A very good evening to one and all who have joined us for this session, and a warm welcome to our resource person for today's session, Mr. Siddharth Rathore. Dear students, I, Dr. Meena Singh, from the Economics Department of Sri Guru Nanak Dev Khalsa College, extend a warm welcome to you in our Khalsa family. You are our part and parcel, and remember, we care for you and will always be there for you. You must be feeling the change from school life to college life, and I'm sure you will be enjoying that. You must have familiarized yourself with the college environment, but the purpose we are here today is purely academic. You have chosen various courses, but I'm dead sure there are so many confusions in your mind regarding the NEP, the majors and minors for BFE students, the SEC courses, value-added courses, and so on. And we felt that some hand-holding is definitely required. The system is new, and thus it is important to understand the nitty-gritties of it so that you don't end up making any wrong decision due to your ignorance. We sincerely hope that you adapt yourself to these changes and take full advantage of it. It is said that investment in knowledge gives the best interest. It is always a better choice to learn from a knowledgeable person than trusting unchecked facts. Keeping in mind the same thought, we have with us today Mr. Siddharth Rathore to walk you through the new system. Siddharth works as an assistant professor in economics department of Gargi College, University of Delhi. He hails from a family of professors rooted to public education and has contributed 100 years of teaching in University of Delhi as a family across diverse domains. Siddharth has a master's in economics from Delhi School of Economics and PGDM in artificial intelligence and machine learning from University of Texas, Austin. And he is currently in the final year law from Delhi University. Apart from Delhi University, Siddharth is also a visiting professor at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, where he trains IAS, IPS, IFS and Civil Services probationary officers in the foundation course. In the past, he has also given guest lectures at Niti Aayog, Indian Institute of Public Administration and various central university colleges. His YouTube channel, The Pink Professor, is followed by a lot of university students as well as civil service aspirants. Thank you, Siddharth, for sparing your valuable time for our students. Over to you, Siddharth. Lecture is always bilingual, so it'll be in English and Hindi. I can understand a little bit of Punjabi, but I can't probably speak Punjabi. So I can take questions in both, and I'll repeat myself in English and Hindi because again बहुत सारे students होंगे जो हिंदी medium से भी होंगे और जो संस्कृत probably course ले रहे होंगे. Recording in progress. So I'll just share my screen. I'll just stop my video. Okay, I hope my screen is my PPT is visible. Yes, it's visible. Okay, so I welcome you to this particular session. We'll start with the overview. Instead, I'll start with the honors courses, and then I'll go on to the BA program course, and then BSc program is not offered, so the slides are there, but I don't think it's necessary for SGND Khalsa. So let's start with the brief overview. So what I've done is I've kind of drawn an analogy from one of my favorite sports, which is F1. And we'll be talking about NEP कि NEP क्या है, NEP का जो ये so we'll be talking about the spirit of NEP. NEP का जो हमारा spirit है वो एक multidisciplinary approach है. What is this multidisciplinary approach जिसमें हम major and minor बनाते हैं. So we'll be talking about कि ये major और minor कैसे बनता है, ये multidisciplinary क्या है, इसके अंदर multiple exit और entry के options हैं. So you can leave your course in 1 year, you can leave your course in 2 years, you can leave your course in 3 years or in 4 years. एंड जब आप लीव करेंगे आपको एक सेपरेट काइंड ऑफ डिग्री मिलेगी, तो विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डिग्री. सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनईपी वेयर यू हैव इजी एंट्री, इजी एग्जिट एंड देन यू हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन जो आज की डेट में चाहिए भी. सो दैट इज व्हाट इज देयर इन द एनईपी. देन वी विल टॉक अबाउट द मॉकिंग स्कीम. मॉकिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे कि
अच्छा हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, व्हाट इज दीज क्रेडिट्स, ये SGPA और CGPA क्या होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज आई विल टेल यू इन द एंड कि अगर आपने 7.9 CGPA बना लिया, 7.8 समथिंग विच इज इक्वल टू 75%, देन द न्यू UGC गाइडलाइन से दैट आप डायरेक्टली PhD कर सकते हो, आपको मास्टर्स करने की भी जरूरत नहीं है. So that is why you need to it is very important for you to understand कि ये SGPA क्या होता है और CGPA क्या होता है और ये बनता कैसे है. Then we will talk about the 4-year course structure. That what is this 4-year course structure, इसके अंदर types of courses क्या है, major degree क्या है, minor degree क्या है, इसके अंदर फिर उसके बाद there are other type of courses like SEC, VAC, GEs. What are these? कई कोर्सेज, फॉर एग्जांपल जब मैं ऑनर्स के बारे में बताऊंगा तो GE बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर GE के बेसिस में माइनर बनेगा, बट दैट इज़ नॉट द केस अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हो. BA प्रोग्राम के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एंड इसीलिए उनको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो वील अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू टेक दीज GEs एंड व्हाट आर दीज SECs, व्हाट आर दीज VACs. और अगर आपका कॉलेज कुछ ऑफर नहीं कर रहा तो आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो बट आपके कॉलेज में वो प्रॉब्ली ऑफर नहीं हो रहा है, तो what is the avenue that you have? I'll discuss about these cluster colleges. And then this is generally I don't think I'll have the time for this. I'll give you my contact just in case you need this generic gyan that I give on how to make the best of college. And then we'll take questions and answers in the end. So this is going to be the kind of flow of my particular session. Now let me turn to the honors courses. नाउ जब हम ऑनर्स कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो आप कोई भी ऑनर्स कोर्स ले सकते हैं. मेरा एग्जाम्पल, अच्छा आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, मैं उसके एग्जाम्पल के साथ चलूँगा एंड देन सिमिलरली मैं BA प्रोग्राम के लिए आई विल टेक एन एग्जाम्पल. नाउ लेट्स डिस्कस कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर कैसा होता है. इफ़ यू सी दी फर्स्ट सेमेस्टर इन एन ऑनर्स कोर्स तो आपके पास यहाँ पर 3 कोर डिसिप्लिन्स हैं. एक जनरल इलेक्टिव है, एक AEC है, एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है और एक VAC है. दीज आर दी 7 पेपर्स दैट यू वुड हैव टू स्टडी इफ यू आर एन ऑनर्स कोर्स. तो यहाँ पर जो आपका एक कोर डिसिप्लिन वाला है, दैट मीन्स आपका एक कोर डिसिप्लिन है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस आपका कोर डिसिप्लिन है और उसके अलावा आप किसी और सब्जेक्ट के अंदर भी माइनर बनाएंगे. विल सी हाउ दैट माइनर इज. तो सपोज आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके पास एक पहला कोर ये, दूसरा कोर ये, तीसरा कोर. तो ये 3 कोर्स जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, दीज हैव टू बी टेकन फ्रॉम योर पेरेंट डिपार्टमेंट. जिस भी डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया है उस डिपार्टमेंट का आपको कोर्स सब्जेक्ट लेना और 3 सब्जेक्ट्स होंगे एंड दीज आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिनका वेटेज भी ज्यादा होता है. तो उनका वेटेज जो होगा वो 4 क्रेडिट है. सो एनीथिंग विच हैज 4 क्रेडिट इज यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ हेवियर कोर्स एंड एनीथिंग विच हैज लेस देन 4 क्रेडिट यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ लाइटर कोर्स. सो दीज आर 4 क्रेडिट्स ईच. तो ये आपके पास टोटल 12 क्रेडिट हो गए. उसके अलावा एक जनरल इलेक्टिव लेना है. नाउ जनरल जो मैं आपको बता रहा था कि NEP का स्पिरिट जो है इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. सो अ स्टूडेंट माइट वांट टू हैव अ मेजर इन पॉलिटिकल साइंस बट अ माइनर इन इकोनॉमिक्स. सो आप अगर किसी और सब्जेक्ट में कुछ आप अपनी डिग्री बनाना चाहते हैं तो आपकी जो डिग्री होगी वो आप कहोगे कि पॉलिटिकल साइंस में मैंने मेजर पढ़ा हुआ है बट कुछ माइनर भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं. तो अगर आप माइनर बनाना चाह रहे हो तो आपको जनरल इलेक्टिव किसी सब्जेक्ट का लेना है. द आइडिया ऑफ जनरल इलेक्टिव इज टू एक्सपोज यू टू इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. एंड रिमेंबर, मैं आपको पास बात में ये वापस बताऊंगा, अगर आपने 7 GE ओवरऑल अपने 8 सेमेस्टर्स के अंदर अक्रॉस 4 ईयर्स अगर आपने 7 GEs एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था और इसने 4 साल के अंदर 7 GE इकोनॉमिक्स के ले लिए, तो इसको इकोनॉमिक्स के अंदर माइनर की डिग्री मिल जाएगी. एंड द बेनिफिट ऑफ माइनर डिग्रीज कि आप उसके अंदर आगे जाके मास्टर्स कर सकते हो, जिसके बारे में ज़्यादा भी हमें पता नहीं है कि किस तरीके से वो वर्कआउट करेगा. बट 7 पेपर्स विल गिव यू अ गुड एक्सपोजर ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल. आप पॉलिटिकल साइंस तो आप पढ़ ही रहे हो बट 7 पेपर काफ़ी अच्छे होंगे कि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा इकोनॉमिक्स के बारे में कि व्हाट इज दिस डिसिप्लिन. So this is the idea of general elective. Then you have ability enhancement course. अब ability enhancement course जो है ये flip mode में चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. एक सेमेस्टर में आप लैंग्वेज पढ़ेंगे और दूसरे सेमेस्टर में आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ा तो आप सेकेंड सेमेस्टर के अंदर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर थर्ड सेमेस्टर में आप हिंदी पढ़ेंगे और फोर्थ सेमेस्टर में इन्वायरमेंट पढ़ेंगे.
दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप मोड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरनमेंट पढ़ा तो आप सेकंड सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर थर्ड सेमेस्टर में एनवायरनमेंट पढ़ेंगे और फिर फोर्थ सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ेंगे. सो दिस इज हाउ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज लुक लाइक. देन यू हैव स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज. मैं आपको एक पूरी लिस्ट दिखाऊंगा स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की. आपके कॉलेज में भी एक लिस्ट सर्कुलेट की गई होगी कि ये कोर्सेज जो हैं स्किल्स के हमारे कॉलेज के अंदर अवेलेबल हैं. सो यू कैन सी योर कॉलेज स्किल्स कि आपके पास ये स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज आपके पास ऑफर हुए हैं, एंड उनके बेसिस पे यू कैन टेक दो स्किल्स. आई जस्ट शो इट सम स्किल दिस थिंग कोर्सेज टू यू. लेट मी. तो इस तरीके से आपके पास एक लिस्ट है. मैं आपको एक छोटी सी और लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें मैंने इसको अच्छे से डिवाइड कर रखा है कि कौन सा कोर्स आप किस चीज़ के लिए ले सकते हैं. लेट मी. और मे बी इन द एंड आई कैन शो यू दैट पर्टिकुलर लिस्ट कि कौन सा डिपार्टमेंट हर कोर्स में कोई ना कोई डिपार्टमेंट कुछ ऑफर कर रहा है. तो इफ़ यू सी दीज कोर्सेज, दीज आर योर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज. तो इफ़ यू सी आपके पास कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, क्रिएटिव राइटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, साइबर कंसर्न्स. जिनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है उनके लिए बेसिक IT टूल्स. अनदर सब्जेक्ट दैट आई टीच एट गार्गी इज एडवांस स्प्रेडशीट, जिसमें आप एक्सेल पढ़ते हो. ऐसे ही जिनको प्रोग्रामिंग में जाना है, जिनको एनालिटिक्स में जाना है, उनके लिए स्टैटिस्टिक्स विद R है. जिनको अगेन प्रोग्रामिंग में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, उनके लिए यहाँ पर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर या एसेंशियल्स ऑफ पाइथन या प्रोग्रामिंग विद पाइथन है. और जिनको पाइथन प्लस एनालिटिक्स करना है उनके लिए पाइथन ये है, एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन है. जिनको विजुअलाइजेशन देखना है डेटा का उनके लिए ये है. तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं. And again, just in case if you feel ki I want to take up a particular course and it's not offered by my college, then you would have the option of taking that particular course in the case of these cluster colleges, which I'll tell you about. So let's talk about these skill enhancement courses. So skill enhancement courses हैं basically आपके skills develop करने के लिए. अब स्किल एनहांसमेंट कोर्स और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज एज वेल एज वैल्यू एडिशन कोर्सेज, इनके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो 2 हैं. ठीक है. सो दे आर ऑफ लोअर क्रेडिट पॉइंट्स. एंड वैल्यू एडिशन कोर्स, अगेन वैल्यू एडिशन कोर्सेज में आई विल शो यू इन द एंड अ लिस्ट जो हर कॉलेज ऑफर करता है. जरूरी नहीं आपके कॉलेज में सारी की सारी लिस्ट ऑफर हो रही हो. कई कॉलेज में सारी लिस्ट नहीं ऑफर होती. ऑफ कोर्स देयर आर दीज कंस्ट्रेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. सो you can maybe opt for a value addition course which is offered by the cluster colleges, which I'll again tell you कि what are these cluster colleges. आपके केस में एक JDMC कॉलेज है, that is the core cluster college of your area. So I'll show you that entire list as well. So ये validation courses जैसे हो गया, हमें ethics का एक validation course या फिर से योगा या फिर validation course on fundamental duties. इस तरीके से आपके पास एक पूरी लिस्ट है जिनमें से आप कोई भी एक validation course ले सकते हैं. Now, my personal suggestion would be that you take a course which kind of overlaps or which dovetails with your career. तो आप इस तरीके से कोर्स नहीं लीजिए कि मेरा फ्रेंड ले रहा है, मेरी फ्रेंड ले रही है, इसलिए मैं वो पर्टिकुलर कोर्स ले रहा हूँ. Your friend might be very good at Python, your friend might be good at R, उसने प्रोग्रामिंग शायद से स्कूल में पढ़ी हो, बट आपने नहीं पढ़ी है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे. तो इसलिए you need to decide that what is the career option that I want, and based on those career options what kind of subjects should I take. For example, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का, जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस के लिए आते हैं कि सर हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं और हमें UPSC देना है आगे जाके, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स एज माइनर कर लीजिए क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं. इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में आप ऑप्शनल ले लीजिएगा बाद में, और इकोनॉमिक्स एक टफ सब्जेक्ट इन जनरल है जो UPSC में भी आपको काम आएगा, लाइफ में भी काम आ जाएगा. तो इस तरीके से आप जनरल इलेक्टिव इकोनॉमिक्स का ले लीजिए. सो दिस इज हाउ आई जनरली टेल स्टूडेंट्स दैट यू थिंक अबाउट योर करियर, दैट हाउ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल फिट इन टू योर करियर, एंड उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन चूज कीजिए. सो इफ यू सी, ये आपके 7 पेपर्स हैं, टोटल 22 क्रेडिट्स हैं आपके पास. ये 4 पेपर के 4 क्रेडिट, 16 प्लस 3 पेपर 2 क्रेडिट ईच, 22 क्रेडिट्स is the amount of credits that you're going to earn from the first semester. If you see the second semester looks exactly like the first semester. यहां पर अगेन आपके पास 3 कोर आ जाएंगे. तो आपने पहले सेमेस्टर में 3 कोर पढ़े, सेकेंड सेमेस्टर में अगेन आप 3 कोर पढ़ रहे हैं. अगेन दिस इज ऑनर्स फोक्स.
डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं तो दिस इज नॉट फॉर यू, मैं आपको आगे जाके प्रोग्राम के बारे में भी बताऊंगा. सो अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट तो वो, अगर जैसा हम एग्जांपल ले लेते हैं, दी स्टूडेंट हु वाज स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस, तो वो अगेन सेकंड सेमेस्टर में 3 कोर पढ़ेगा, एक जनरल इलेक्टिव लेगा और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स फ्लिप मोड में. तो अगर उसने पहले सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ा तो दूसरे सेमेस्टर में एनवायरमेंट आ गया. अब स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिशन कोर्सेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी विल गिव यू अनदर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस which may include these, which may have other options as well, and then you can choose कि मुझे ये करना है. These are not department specific, आप किसी भी डिपार्टमेंट का उठा सकते हो. For example, in my college, yoga as a value addition course is offered by chemistry department. So it's not necessary, you can't map the value addition courses or the skill enhancement courses to a particular department, can be offered by multiple departments. In fact, a particular course can also be offered by 2 different departments. For example, basic IT tools है या फिर financial literacy एक value addition course है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी हो सकता है कॉमर्स डिपार्टमेंट भी ऑफर कर रहा हो, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी ऑफर कर रहा हो, तो आप किसी उनमें से किसी का भी ले सकते हैं. सो अगेन यहाँ पर आपके पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आएगी जिनमें से आपको चूज करना है, आपको ध्यान से चूज करना है इसके बारे में. जनरल इलेक्टिव आप चेंज कर सकते हैं, आप हर सेमेस्टर में जनरल इलेक्टिव चेंज कर सकते हैं. बट अगर आपने 7 जनरल इलेक्टिव एक डिपार्टमेंट के नहीं लिए, देन यू विल लूज आउट ऑन गेटिंग अ माइनर डिग्री. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नॉट जस्ट टू डू अ मास्टर्स, बट ऑल्सो इफ यू प्लान टू अप्लाई अब्रॉड, तो दे हैव अ फोकस ऑन कि आपका माइनर किस चीज में है. so therefore if you are planning to go abroad, then you should think of making a minor in a particular subject. Yeah, so you should think of keeping a minor in a particular subject. Then if we talk about the entire first year, let's now look back at the entire first year. तो आपने 22 क्रेडिट्स फर्स्ट सेमेस्टर से लिए, 22 क्रेडिट सेकेंड सेमेस्टर से लिए, ओवरऑल यू गॉट 44 क्रेडिट्स. And if you leave, remember the first statement that I told you, that the NEP introduces some kind of an easy exit and an easy entry option. So if a student plans to exit from the university and says, no, I've had enough, I don't want to continue my studies any further, then the university will award that particular student a undergraduate certificate in that particular area. For example, ये political science का student था, तो इसको 1 साल बाद अगर ये छोड़ देता है अपना एजुकेशन, तो उसको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, अंडरग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन पॉलिटिकल साइंस. ये हुआ हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑनर्स. देन लेट अस लुक एट द सेकेंड ईयर. अब सेकेंड ईयर में सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर देखते हैं. अब थर्ड सेमेस्टर में पहली चीज तो बिल्कुल कॉमन है कि आप अगेन 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं कोर के. सो ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था तो इसने पॉलिटिकल साइंस के अब तक 9 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं. और फिर अब एक नई चीज आती है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो सब्जेक्ट आप लोगे जो आपके खुद के डिसिप्लिन का है. तो ये स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का है, तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का ही डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले सकता है, आप किसी और डिसिप्लिन का नहीं ले सकते हो. और इसके पास ऑप्शन है जनरल इलेक्टिव. अब इन दोनों में से कोई एक चूज करना है. पिछले साल तक क्या था? पिछले साल तक आपको जनरल इलेक्टिव चूज ही करना था, बट यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको चॉइस दी है कि आप डीएससी ले लीजिए या जीई ले लीजिए. अगर आपको माइनर बनाना है तो आप जीई कंटिन्यू कर लीजिए. अगर आपको अभी नहीं करना तो आप बाद में भी माइनर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम 7th और 8th सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे तो आपके पास 2 जीई के ऑप्शंस आ जाएंगे. सो बट आइडियली व्हाट यू शुड डू इज यू शुड टेक अप जीईज अनटिल अनलेस आपको पता है कि मुझे माइनर बनाना नहीं है, मुझे जितने कोर्सेज मैं ले सकता हूँ एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के मुझे वही लेना है. सपोज मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना लाइफ में, तो उस केस में आप सिर्फ जीईज को अवॉइड करिए और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट लेते रहिए. सो बट अगर आपको 2 डिसिप्लिन पढ़ने हैं तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की जगह यहाँ पर आप जनरल इलेक्टिव ले लेंगे. एंड अगेन रिमेंबर, जनरल इलेक्टिव अगर आप सेम डिसिप्लिन का रखेंगे तो बेटर रहेगा, बट अगर आपको लग रहा है कि मैंने किसी और डिसिप्लिन पढ़ना है तो आप किसी और डिसिप्लिन का भी ले सकते हैं. बट रिमेंबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम ऑनर्स कोर्स में 10 जीईज होंगे मैक्सिमम पॉसिबल. उनमें से 7 आपको एक डिसिप्लिन के लेने पड़ेंगे टू मेक अ माइनर. ये मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा, आपको आगे जाके भी बताऊंगा फिर से. फिर अगेन यहाँ पर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ये वही फ्लिप मोड में चल रहा है जो आपने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट, वही. अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा था तो आप फिर से लैंग्वेज पढ़ेंगे. अगर आपने हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा था लैंग्वेज का, वही सेम सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसी में. और अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा था तो वही एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका सेकंड वर्जन बेसिकली. देन यू हैव
now you have another internal choice between skill enhancement course and internship, apprenticeship, project and community outreach. तो यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देगी कि यू कैन डू अ स्किल एनहांसमेंट कोर्स, तो अगेन आपके पास एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो है वो ऑफर कर दिए जाएंगे कि ये सारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज आप इनमें से कोई भी एक ले लीजिए. देन दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा कि यूनिवर्सिटी कहेगी कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो. अगेन प्रैक्टिकलिटी एनईपी लेके आ रहा है कि हमें ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन हमने स्किल्स क्या सीखी. तो जैसे मैं अभी आज की डेट में लॉ कर रहा हूँ, तो लॉ में मैंडेटरी है 5th सेमेस्टर में कि आपको एक इंटर्नशिप करनी है किसी लॉयर के अंदर और आपको एक इंटर्नशिप की डायरी दिखानी. तो वो आप प्रैक्टिकल चीजें सीखते हो, थ्योरी में नहीं सीखते हो, प्रैक्टिकल सीखते हो. सिमिलरली अप्रेंटिसशिप भी ऐसी चीज होती है. प्रोजेक्ट हो सकता है, कम्युनिटी आउटरीच हो सकता है, सपोज आप किसी एनजीओ के पास जाके काम कर रहे हो. बट अगेन ये जो डिटेल्स है ना, ये अभी यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है कि कौन से एनजीओ, कौन सा, what will constitute as community outreach, what will constitute as internship, what will constitute as apprenticeship, what will be a project. So all of these details are yet to come from the university, and with time the university will give all these details. But what you need to remember is that you have an internal choice here. आपके पास SEC या IAPC के बीच में एक ऑप्शन है जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं. एंड लास्टली you have these value addition courses. अगेन जैसे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में वैल्यू एडिशन कोर्सेज थे, वैसे ही थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी आपके पास वैल्यू एडिशन कोर्सेज की एक पूरी लिस्ट है. उनमें से यू कैन चूज एनी पर्टिकुलर वैल्यू एडिशन कोर्स. कमिंग टू फोर्थ सेमेस्टर अगेन लुक्स लाइक द थर्ड सेमेस्टर. ये स्टूडेंट सपोज ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, तो इसने 3 कोर सब्जेक्ट्स और पढ़े फॉर दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस के. एंड अगेन वही डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और जनरल इलेक्टिव के बीच में चॉइस. अब ये दूसरा जनरल इलेक्टिव और चौथा जीई है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में ये फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो चौथा जी पोटेंशियली. और इनमें चॉइस फिर एईसी अगेन फ्लिप मोड में. रिमेंबर जो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जो सब्जेक्ट आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, उसका ही कॉन्टिन्यूशन आ जाएगा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर. एंड देन अगेन योर चॉइस बिटवीन अ स्किल एनहांसमेंट कोर्स एंड अ इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट एंड कम्युनिटी आउटरीच. तो इनमें से आपको जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है, आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं. एंड वैल्यू एडिशन कोर्स जो आपके पास लिस्ट होगी, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं. सो इफ यू सी योर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के अंदर अगेन इन थर्ड सेमेस्टर एंड इन फोर्थ सेमेस्टर यू आर अर्निंग 22 क्रेडिट्स ईच. एंड ओवरऑल after the second year, if a student says that I want to quit my college, I want to call it off, then the student will get an undergraduate diploma degree. तो अगर आपने 2 साल बाद कहा बहुत हो गया, मुझे अभी और एजुकेशन नहीं परस्यू करनी, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री देगी इन पॉलिटिकल साइंस. अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उसके लिए आपके पास 88 क्रेडिट्स होने चाहिए. So this is about your second year. Let's move on to the third year. फिफ्थ सेमेस्टर के पास आ जाते हैं. फिफ्थ सेमेस्टर में अब आपका जो पैटर्न है वो काफी डिफरेंट हो चुका है. अब यहां पर अगेन ये स्टूडेंट जो है 3 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है. तो अब तक उसने टोटल 15 कोर पढ़ लिए हैं अपने सब्जेक्ट डिसिप्लिन के, विच इज पॉलिटिकल साइंस. अब यहां पर इफ यू रिमेंबर पिछले हमारे सेकेंड ईयर के अंदर डीएसई और जीई के बीच में इंटरनल चॉइस थी. अब वो चॉइस खत्म हो गई है. नाउ द स्टूडेंट हैज टू मैंडेटरली टेक अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव. तो आपको चूज ही करना पड़ेगा. आपके पास एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज होंगे. ऐसा नहीं है कि आपको ये बोला जाएगा कि ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है. आपका कॉलेज आपको कहेगा कि मेरे पास ये 3-4 ऑप्शन है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के, उनमें से आप कोई भी एक चूज कर लीजिए. तो आपके पास कोर्सेज का ऑप्शन होगा. पॉलिटिकल साइंस के कोर्स होंगे. पॉलिटिकल साइंस का कोर्स नंबर 1, 2, 3, 4 या 3 कोर्सेज. उन 3 में से आपको कहा जाएगा कि जिन स्टूडेंट्स को 1 चाहिए वो 1 ले लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को 2 चाहिए वो 2 ले लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को 3 चाहिए वो 3 ले लीजिए. तो उस तरीके से आपके पास ऑप्शंस फ्लोट होंगे, उनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं. एंड जनरल इलेक्टिव, अगेन रिमेंबर जनरल इलेक्टिव अगर आप वही कंटिन्यू करोगे जो आपने पहले 4 सेमेस्टर्स में लिया, तो यू आर गेटिंग क्लोजर टूवर्ड्स मेकिंग अ माइनर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. देन अब यहां पर वही चीज रिपीट होती है जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में थी, विच इज अ इंटरनल चॉइस बिटवीन स्किल एनहांसमेंट कोर्स एंड इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट एंड कम्युनिटी आउटरीच. सो आप इनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. एंड इफ यू सी यहां पर आपका वर्कलोड जो है उसमें 6 पेपर्स हैं, वेयर 5 पेपर्स आर देयर विद 4 क्रेडिट ईच एंड 1 पेपर ऑफ 2 क्रेडिट, ultimately giving you 22 credits in the 5th semester. And if you see the 6th
सिक्स सेमेस्टर भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जिसके अंदर आपके पास 22 क्रेडिट मिल जाएंगे आउट ऑफ दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। तो अगर हम थर्ड ईयर देखें तो ये स्टूडेंट जो है थर्ड ईयर के बाद अगर ये कहता है, और ये आपके सीनियर्स की तरह हो गया, जो आपके सीनियर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है वो बिल्कुल वैसी ही डिग्री मिल जाएगी आपको। आप कहते हो 3 साल बाद कि नहीं मैंने अपना एजुकेशन, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा अब यहाँ तक कर लिया है, तो उस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी बैचलर इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जैसा आपके सीनियर्स को प्रॉब्लम मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल वही डिग्री मिल रही है 3 साल बाद। बट अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अब आपको ऑप्शन देगी कि आप चौथा साल कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको रिसर्च की भी डिग्री मिल सकती है और आपको मेजर और माइनर भी मिल सकता है। रिमेंबर, कोई भी ऑनर्स का स्टूडेंट अगर वो थर्ड ईयर में खत्म कर देता है अपना ग्रेजुएशन तो उसको मेजर और माइनर नहीं मिल रहा है, और उसके लिए मास्टर्स जो होगी वो 2 साल की होगी। नाउ इफ यू थिंक, and which I expect a lot of you to do, is that if you now get into the 4th year तो आप 7th सेमेस्टर में जाओगे। 7th सेमेस्टर में अब एक मेजर चेंज आता है। अभी तक आपके हर सेमेस्टर के अंदर 3 कोर सब्जेक्ट्स आ रहे थे आपके डिसिप्लिन के, तो आपने टोटल 18 कोर्सेज पढ़ लिए थे अपने पॉलिटिकल साइंस के टिल योर 6th सेमेस्टर। नाउ अब फ्रॉम 7th सेमेस्टर एक ही कोर पढ़ना है, विच इज द 19th कोर दैट यू आर गोइंग टू डू। एंड अब जो स्पेशल चीज आ गई वो आ गई कि अब 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और 2 जीई। तो ये तीनों डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के होंगे और ये 2 जीई अलग अलग सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं। अब आप इन 5 में से कोई भी 3 ले सकते हैं। अगर आपने इससे पहले तक 6 जीई लिए हुए थे, हर सेमेस्टर में आप जीई लेके चल रहे थे, तो आपको यहां पर एक ही जीई लेना पड़ेगा और आपकी माइनर की डिग्री बन गई। बट सपोज आपने 3rd and 4th सेमेस्टर के अंदर आपने जीई की बजाय डीएसई लिया था, तो आपके पास इन दैट केस आपने 4 जनरल इलेक्टिव पढ़े हुए हैं। तो 4 जनरल इलेक्टिव पढ़े हुए हैं तो यहां पर आपको 2 जनरल इलेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे और फिर 8th सेमेस्टर में 1 जनरल इलेक्टिव मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, सो दैट आपके 7 जनरल इलेक्टिव बन जाए। सो अब आपको चूज करना है कि आप जनरल इलेक्टिव कब चूज करना चाहते हैं, कैसे चूज करना चाहते हैं, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। माय पर्सनल एडवाइस विल बी कि आप डीएसईज एंड में ले लीजिए, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, और जीई यहां पर 1 लेके यहां पर 2 डीएसई ले लीजिए, 1 जीई ले लीजिए, आपका 7 सब्जेक्ट बन गए यहां पर, और आपका माइनर बन चुका है और मेजर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में बन जाएगा। सो यहां पर आपने इन 5 में से कोई भी 3 ले लिए तो 12 क्रेडिट ये, 4 क्रेडिट ये। अब उसके बाद एक और चीज है यहां पर, विच इज डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप दैट यू कैन डू। अब हमें ये नहीं पता है कि ये प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इनकी डिटेल्स बाद में आएंगी, बट व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन राइट अ डेजर्टेशन। डेजर्टेशन इज लाइक अ रिसर्च वर्क दैट यू डू, एंड यूजली मास्टर्स एंड पीएचडी में रिसर्च वर्क होता है, और ये अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और अंडर एनईपी, अंडर यूजीसीएफ, अब ये ग्रेजुएशन के अंदर भी लाया जा रहा है कि स्टूडेंट शुड नो हाउ टू डू रिसर्च। तो आप एक रिसर्च कर सकते हो अपने फाइनल ईयर में, और उसका वेटेज ज्यादा होगा, उसका 6 क्रेडिट का वेटेज है, और वो एक ही रिसर्च बोथ 7th and 8th सेमेस्टर दोनों में चलेगी। सो इफ आई शो यू, यहां पर दोनों सेमेस्टर्स में डेजर्टेशन है और वो कॉन्टिन्यूशन है, ऐसा नहीं आप 2 अलग अलग डेजर्टेशन लिख रहे हैं, आप एक ही डेजर्टेशन लिख रहे हैं। सो सपोज मैं कहता हूं डेजर्टेशन का नाम है मेरा एफडीआई फ्लोज इन इंडिया, या फिर इंडियाज प्रोग्रेस अंडर आत्मनिर्भर भारत। तो मेरा जो टॉपिक है वो सेम रहेगा, मैं कुछ पार्ट उस डेजर्टेशन का 7th सेमेस्टर में करूंगा और कुछ पार्ट उसका 8th सेमेस्टर में करूंगा। अब ये आप डेजर्टेशन अपने मेजर सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। सपोज ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो ये मेजर में अपने पॉलिटिकल साइंस में भी लिख सकता है अपनी डेजर्टेशन, माइनर में भी लिख सकता है। सपोज ये इसका इकोनॉमिक्स में माइनर है तो इकोनॉमिक्स में भी ये डेजर्टेशन लिख सकता है, और इंटरडिसिप्लिनरी भी लिख सकता है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन के ऊपर भी लिख सकता है ये स्टूडेंट, और प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, द डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप आर नॉट येट विद अस। तो अल्टीमेटली ये जो स्टूडेंट अगर 4 ईयर की डिग्री खत्म करता है तो इसके पास ऑप्शन क्या, इसको डिग्री क्या मिलती है? इसको डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर ये आर्ट्स का स्टूडेंट है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद रिसर्च। अगर इसने डेजर्टेशन लिखी है, प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करी, इसने रिसर्च पेपर लिखा है, तो ऑनर्स विद रिसर्च और ऑनर्स विद रिसर्च इन डिसिप्लिन 1
which will be political science and with discipline 2 as minor which will be economics. ये हो सकता है आपकी मार्कशीट पे लिखा हो, पर डिग्री में होगा ऑनर्स, आपका होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद रिसर्च पॉलिटिकल साइंस. सो दिस इज हाउ योर डिग्री विल लुक लाइक. तो ये, और टोटल आपके पास जो क्रेडिट्स मिलेंगे हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट है. टोटल जो आपको क्रेडिट्स मिलेंगे आफ्टर 4 years विल बी 176. नाउ let us see certain things which are very important for an honors course. अगर हम ऑनर्स कोर्स के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं. माइनर डिग्री कैसे मिलती है? माइनर डिग्री मिलती है अगर आप 7 क्रेडिट लो, अगर आप 7 GE लोगे सेम सब्जेक्ट के. सो अगर ये स्टूडेंट जो है अगर ये टोटल 28 क्रेडिट ले लेता है, 7 into 4 क्रेडिट्स ऑफ each GE, अगर 28 क्रेडिट्स ले लेता है ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, दैट मीन्स ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था और इसने इकोनॉमिक्स के साथ GE ले लिए. सो दिस स्टूडेंट विल अर्न अ माइनर इन इकोनॉमिक्स. मेजर डिग्री कैसे मिलेगी? मेजर डिग्री तब मिलेगी, और मेजर डिग्री तभी मिल सकती है, मेजर और माइनर डिग्री तभी मिल सकती है अगर आप 4 साल की डिग्री करो, क्योंकि 7 GE और 20 DSC ये आप 3 साल में तो पढ़ ही नहीं सकते. 3 साल में आपने सिर्फ 18 DSC पढ़े थे, कोर सब्जेक्ट पढ़े थे, और 7वां GE तो आपका 7 सेमेस्टर में बन सकता है. तो आपको मेजर और माइनर का जो डिग्री है वो सिर्फ 4 साल में ही मिलेगी, 3 साल में मिल ही नहीं सकती. मेजर की डिग्री कैसे मिलेगी? आपने 20 तो कोर पढ़े होने चाहिए. 20 कोर कैसे होंगे? हर सेमेस्टर में 3 कोर थे टिल 6 सेमेस्टर, 18 कोर वो हो गए, और उसके बाद 7th और 8th सेमेस्टर में एक एक कोर था, तो आपके 20 क्रेडिट 20 कोर्सेज तो कोर के ये हो गए. और कोई भी 2 DSC, और ये 2 DSC तो इन एनी केस आपने 5th और 6th सेमेस्टर में तो कंपलसरी है DSC, तो वो तो हो ही बन ही जाएगा, तो वो रिक्वायरमेंट इतनी मेजर नहीं है. टोटल जब आपके पास 88 क्रेडिट्स बन जाएंगे तो आपके पास मेजर डिग्री मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस की, या जिस भी डिसिप्लिन में आप से हैं. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, रिसर्च मेथोडोलॉजी. अब एक पेपर आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का 6th या 7th सेमेस्टर के अंदर. मेरा पर्सनल सजेशन है आप इसको 6th सेमेस्टर में ले लीजिए, क्योंकि आपको 7th सेमेस्टर में तो आपको रिसर्च वर्क करना ही है. तो अ स्टूडेंट कैन टेक अ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इट इज कंपल्सरी टू टेक दिस कोर्स. तो जो भी डिसिप्लिन, आप जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का एक कोर्स होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कैसे करते हैं. अगर आप इकोनॉमिक्स में रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसमें आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी इन इकोनॉमिक्स. तो अगर आप मैथ्स में हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इन मैथ्स. तो इस तरीके से आपके पास रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा. बट और ये ऑप्शन होगा कि 6th या 7th सेमेस्टर में एक आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले सकते हैं. जो हमने डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव देखे थे वो 6th या 7th सेमेस्टर में एक तो आपको चूज करना है रिसर्च मेथोडोलॉजी. नाउ सपोज मैं कहता हूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, बट मुझे जो रिसर्च करनी है वो इकोनॉमिक्स में करनी है, तो मैं इकोनॉमिक्स का रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर ले सकता हूं. और अगर मैं इकोनॉमिक्स का रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर लेता हूं, इन दैट केस वो मेरा GE काउंट होगा, क्योंकि मैंने अपने डिसिप्लिन का रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स का जाके किसी और डिसिप्लिन का जाके रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ लिया है. इन दैट केस यही लिखा है यहां पर, दैट द रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ अनदर डिसिप्लिन सो ऑप्टेड शैल बी ट्रीटेड एज अ GE फॉर हिम और हर. नहीं तो आप अपने डिसिप्लिन का लेगो तो वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव माना जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट फ्यू थिंग्स. अगर आप कहते हो कि मुझे 4 साल में डिग्री करनी है और मुझे माइनर का कोई मतलब नहीं है, मुझे माइनर नहीं बनाना, मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स ले लूंगा, तो उस केस में अ स्टूडेंट हु राइट्स अ डिसर्टेशन. तो अगर स्टूडेंट ने कहा कि मैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, मैंने इकोनॉमिक्स का यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बट इकोनॉमिक्स आपके यहाँ वैलिड, क्योंकि आपके यहाँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है इसलिए ये एग्जाम्पल वैलिड नहीं है, मैं पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल दूंगा. सपोज अपने बच्चे ने क्या किया, और स्टूडेंट ने क्या किया, आपने पॉलिटिकल साइंस का आपने मेजर बना लिया, बट मेजर इन द सेंस कि आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, बट आपने किसी भी सब्जेक्ट में माइनर नहीं बनाया. तो उस केस में जो आपको 4 साल बाद डिग्री मिलेगी वो मिलेगी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस. कोई मेजर कोई माइनर नहीं लिखा होगा, बिकॉज रिमेंबर मेजर एंड माइनर आर रिलेटिव टर्म्स. मेजर विल ओनली एग्जिस्ट इफ देयर इज अ माइनर. इफ देयर इज नो माइनर देयर कैन नॉट बी अ मेजर. सो और फिर दूसरा एक स्टूडेंट क्या था, उसने कहा कि यार मुझे मेजर और माइनर दोनों करने हैं. तो उस केस में उस स्टूडेंट ने क्या किया, उसको डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद रिसर्च, किसने रिसर्च भी लिखी है, इन
इकोनॉमिक्स एज मेजर की जगह आप यहाँ पर लिख लीजिए पॉलिटिकल साइंस एज मेजर, क्योंकि आपके कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है बट इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है. तो पॉलिटिकल साइंस एज मेजर एंड इकोनॉमिक्स एज माइनर. सो दिस इज पॉसिबल इन योर कॉलेज. सो इस तरीके से आप अपनी डिग्री इस तरीके से बना सकते हैं. और एक तीसरा तरीका है कि आपने क्या किया, आपने डिसर्टेशन नहीं लिखी, आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं आपको बता रहा था कि आप वो भी कर सकते हो, बट उसकी डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं है. तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स एज मेजर, in your case political science as major, and academic project on entrepreneurship as minor. And finally आप किसी भी सेमेस्टर में 18 क्रेडिट से कम नहीं कमाएंगे और किसी भी सेमेस्टर में 26 क्रेडिट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं. तो आइडियली आपको हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट अर्न करने चाहिए और आपको 22 ही करने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी सेमेस्टर में कह रहे हो कि मैं एक कम पेपर ले रहा हूँ तो दैट मीन्स आप किसी और सेमेस्टर में एक पेपर ज़्यादा भी ले रहे हैं. So you should stick to 22 credits, but you have that flexibility of taking 18 in one and 26 in the other. So this is about your honors ka course. Now let us have a look at the program. अगर किसी को पास honors के questions हैं तो आप you can type in your honors courses, then I'll start with your program. किसी को कोई honors का कोई question हो, you can type in the chat box. Okay, one question is there. Question as well, so that people can see these questions. So what should I choose in GE if I am BSc Maths honors student and willing to prepare for banking? Again, Arya, it's a personal choice. आपको banking करना है तो आप economics ले सकते हैं या commerce ले सकते हैं. My preference will be economics. Again, that's my bias involved. Economics में आप बहुत ज़्यादा और भी subject पढ़ेंगे तो आप वो ले सकते हैं. देवाश, इस केस में आप क्या करोगे, आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप कर लीजिए कि आपने सपोज आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मिला के भी रिसर्च हो सकती है. बीकॉम प्रोग्राम, आई विल गेट टू प्रोग्राम. जैसे मैं अभी प्रोग्राम खत्म करूंगा तो मैं आपको बीकॉम प्रोग्राम के बाद बताऊंगा. 3 साल बाद अगर आप छोड़ रहे हैं धोनी जी तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल रही है, और 4 साल बाद अगर आप छोड़ेंगे तो ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिल सकती है, और मेजर और माइनर. बीबीई के कोर्स के लिए त्याग, इस केस में जीई, एसईसी, वीएसी आप अपने हिसाब से चूज कीजिए. अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, अगर आप करियर में देखिए कि इकोनॉमिक्स आपको यूज आ रहा है तो आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए. अगर आपको कॉमर्स सूट कर रहा है तो कॉमर्स ले लीजिए, बट आइडियली आपको कॉमर्स सूट नहीं करेगा क्योंकि वही सब्जेक्ट आप बीबीई में भी पढ़ रहे होंगे. तो आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, और उस हिसाब से आप जीई लीजिए. सिमिलरली आप एसईसी भी उस बेसिस पे लीजिए और ये भी उसी बेसिस पे लीजिए. अजय, it will make sense to take up 4 years because of the fact कि आपको exposure ज़्यादा मिल जाएगा कॉलेज का. तो my personal preference will be, एक तो एज का हो सकता है कि आप whether you are turning 21 at the right age to take it up, तो वो भी एक क्वेश्चन है. दूसरा, सपोज आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स के थोड़े से और कोर्सेज पढ़ लेने चाहिए, थोड़ा सा और जीईज एक्सप्लोर करना चाहिए. आपको एक एडिशनल ईयर मिल रहा है टू स्पेंड इन कॉलेज. आई वुड सजेस्ट यू टेक द 4 year कोर्स. थोड़ा सा एक रिसर्च का एंगल भी ले लीजिए, और हो सकता है कि आपको बाद में मास्टर्स की ज़रूरत पड़ जाए. तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस तो ये रहेगा कि आप 4 साल का ही कोर्स कीजिए. यूपीएससी कहीं नहीं भागा जा रहा. यूपीएससी यू कैन गिव द अटेम्प्ट इन 22, एंड इनफैक्ट अगर आप पहले अटेम्प्ट में, बाय द वे, अगर आपका ये मन है कि नहीं मुझे 21 में करना है तो आप ये देख सकते हैं. बट एक छोटा सा डिसएडवांटेज बता देता हूँ मैं आपको. उसका ये है कि यूपीएससी, इफ़ यू क्रैक यूपीएससी बिफोर द एज ऑफ 24, then only you are eligible for the highest position of an IAS, which is the cabinet secretary. Cabinet secretary is the highest position that an IAS officer gets, and the cutoff for that is that you should qualify the examination before the age of 24. But still आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं. बैंकिंग में जाना, आई वुड से टेक अप इकोनॉमिक्स, आपको बेनिफिट करेगा. Yes, so to address that, this particular question कि can we jump to PhD? Yes, you can jump to PhD अगर आपने CGPA जो है अपना 7.9 मेंटेन किया है. 7.9 CGPA roughly estimates is to converts itself into 75%. बेसिकली अगर आपको CGPA से परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना होता है तो आप 95.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.952 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है. तो सपोज किसी की 10 CGPA है तो दैट मीन्स उसका 95.2% मार्क्स है.
तो अगर आपके 7.9 CGPA है तो इट इज इक्वल टू 75%. तो उस केस में यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू अ PhD. यू डोंट नीड टू डू अ मास्टर्स. एंड इनफैक्ट आप 7 साल में बिल्कुल PhD करके, मतलब 4 साल की डिग्री ये है और 3 साल की PhD अगर आप जल्दी से वाइंड अप कर लें तो 7 साल में तो आपने पूरा अपना करियर वाइंड अप कर लिया और फिर आप टीचिंग में या जहां पर भी आप जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं. Is it compulsory to take GE? Yes, it is compulsory to take a GE. If you are an honors student, it's compulsory. In fact, GE तो in any case compulsory है. What is the duration of master? अगर ये मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया. अगर आप 4 साल की मास्टर्स कर रहे हैं, 4 साल की अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आपकी मास्टर्स 1 साल की है, 2 साल की नहीं है. Any other question? Okay. Then if you are an honors student, I would say that you can leave. But in the end, I will also tell you something. जो लोग UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सिर्फ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो आई विल टेल यू अ पर्टिकुलर ग्रुप दैट आई बीन ऑर्गेनाइजिंग फॉर लास्ट 6 years, जिसमें अराउंड 2000 स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के. सो वेयर एवरी डे आई गिव न्यूज़पेपर आर्टिकल्स टू रीड. So that will be in the end. So if you want to hang around till that point, you can do that. Let me now start with BA program. I'll take all your questions in the end now. So अब BA program क्या है? अब BA program का जो नाम है वो चेंज हो गया. अब ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए है. BA program का जो नाम है अब इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कहते हैं. अगर आप अपने सीनियर से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सीनियर से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स BA प्रोग्राम के डिसिप्लिन से हैं. तो दैट मीन्स वो स्टूडेंट जो है ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता है. अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स होंगे. सो अभी मैं इसके बाद आई विल टेल यू अबाउट BCom प्रोग्राम, बिकॉज BCom प्रोग्राम लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर टू BA प्रोग्राम एक्सेप्ट फॉर वन स्मॉल चेंज. ठीक है, लेट अस सी कि ये जो नया फॉर्मेट है BA प्रोग्राम का वो कैसे दिखता है. अब हम 3 कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं. जैसे ऑनर्स में 3 कोर पढ़ते थे, यहां पर भी 3 कोर पढ़ते हैं. अब बट 3 कोर कैसे पढ़ते हैं? अगेन माय अजम्पशन इज गोइंग टू बी, मैं एक एग्जांपल लूंगा कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है आपके कॉलेज के अंदर. सो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर उस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो वो स्टूडेंट जो है अब उसके पास ऑप्शन ये है कि वो इकोनॉमिक्स में मेजर करना चाहता है कि पॉलिटिकल साइंस में मेजर करना चाहता है. और ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा. इज माई स्क्रीन नॉट विजिबल? It's visible, Siddharth. Okay. So please check my screen is visible, folks. So Yes. now अब इस स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोचने का, और तमीज़ से आपको घर पे बैठ के सारा सिलेबस निकाल के सोचना है. आप यहाँ पर एक मोमेंट पे जाके नहीं सोच सकते. सपोज अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं घर पे पूरा पॉलिटिकल साइंस, अगर सपोज मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन के अंदर हूँ तो मैं पूरा पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन, पूरा इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन साथ लेके बैठता. और अगर मैं स्पेशली अगर मैं UPSC का एस्पिरेंट होता बाय द वे, तो मैं साथ में UPSC का भी सिलेबस लेके बैठता. मैं तीनों सिलेबस लेके बैठता और फिर मैं पूरा अपना एनालिसिस करता. या फिर से मैं बैंकिंग का एग्जाम देना चाहता हूँ तो मैं बैंकिंग का सिलेबस लेके साथ में बैठता. अब मुझे ये सोचना है कि मुझे हेल्प कैसे मिलेगी. अगर मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, सपोज मैं UPSC की बात कर लेता हूँ, और मुझे पॉलिटिकल साइंस, अगेन मैं पॉलिटिकल साइंस का इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस लेते हैं एज ऑप्शनल, कई लोग इकोनॉमिक्स भी लेते हैं. तो सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में मेजर करना है, तो उस केस में मैं 2 सब्जेक्ट कोर जो लूंगा वो पॉलिटिकल साइंस के लूंगा और 1 सब्जेक्ट जो लूंगा वो इकोनॉमिक्स का लूंगा. इंस्टेड अगर आपको लाइफ में आपको चाहिए था कि यार मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी थी बट SGNT में इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है और शायद से मेरा कट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स का नहीं हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं बेस्ट केस सिनेरियो क्या ले सकता हूँ? तो मैं क्या करूँगा, मैं इकोनॉमिक्स में मेजर करना शुरू कर दूंगा और इकोनॉमिक्स में 2 डिसिप्लिन मेजर लूंगा इकोनॉमिक्स के यहाँ पर, अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरफ जाना है. क्योंकि 4 साल बाद, रिमेंबर अब अगेन आई एम टेलिंग यू, गिविंग यू अ काइंड ऑफ अ रेवलेशन हियर, 4 साल बाद आपको ऑनर्स की डिग्री मिलने वाली है, आपको प्रोग्राम की डिग्री नहीं मिलेगी. तो यू विल बी रियली क्लोज टू एन ऑनर्स डिग्री. आज की डेट में एक प्रोग्राम स्टूडेंट और ऑनर्स स्टूडेंट, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. आज की डेट में प्रोग्राम का स्टूडेंट ऑनर्स वाले के साथ कंपीट ही नहीं कर पाता है क्योंकि ऑनर्स वाला इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ता है. बट अगर आप मेजर कर लेते हो इकोनॉमिक्स के अंदर इन केस ऑफ BA प्रोग्राम, तो यू हैव कम वेरी क्लोज टू एन ऑनर्स सब्जेक्ट, क्योंकि आप उतने ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उतने ही स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो. बट यू नीड टू प्लान इट वेल अहेड.
ऐसा ना हो कि आप इको ऑनर्स की तरफ चले जाओ फिर रियलाइज करो कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा मैथ्स है। तो इसीलिए यू नीड टू थिंक इट थ्रू बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। डोंट बी गाइडेड जस्ट बाय योर पियर्स की दोस्त ये कर रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, इन सब चीज़ों को भूल जाइए, आप अपना करियर सोचिए। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में 2 कोर पढ़ोगे एक डिसिप्लिन के जिसमें आप मेजर करना चाह रहे हो, और एक कोर पढ़ोगे उस डिसिप्लिन का जिसमें आप मेजर नहीं करना चाह रहे हो, नॉन मेजर या फिर माइनर जिसमें आप बनाना चाह रहे हो। तो सपोज ये स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक्स में मेजर करना चाहता है और पॉलिटिकल साइंस में माइनर करना चाहता है, तो ये 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के मेजर में पड़ेगा, जो एक इकोनॉमिक्स के केस में एक आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है और दूसरा आपका बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, वो सब्जेक्ट। और फिर तीसरा सब्जेक्ट जो पढ़ेगा वो पॉलिटिकल साइंस का, आई थिंक पॉलिटिकल थ्योरी करके एक सब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो इस तरीके से उस स्टूडेंट ने 3 कोर पढ़ लिए। उसके अलावा फिर एक सब्जेक्ट पढ़ेगा वो जीई। नाउ इन केस ऑफ अ बीए प्रोग्राम स्टूडेंट, आपके पहले 4 सेमेस्टर्स के अंदर जो जनरल इलेक्टिव होगा वो एक लैंग्वेज ही होगा। आप सिर्फ लैंग्वेज पढ़ोगे, जी एंड फॉर्म ऑफ जी इन दी फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स। दीज कैन बी 2 इंडियन लैंग्वेजेस, या फिर आप आप इंडियन लैंग्वेजेस ले सकते हो, दोनों इंडियन लैंग्वेजेस ले सकते हो, या फिर आप एक इंडियन या एक कोई और लैंग्वेज भी ले सकते हो। आई टेल यू दी डिटेल्स ऑफ इट लेटर ऑन, जब मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वो दिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि आप क्या क्या ले सकते हैं। यहां पर आपके पास ये ऑप्शन है ना। कई बार मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा जो हिंदी और संस्कृत का या हिंदी और पॉलिटिकल साइंस का, तो कहेगा कि मेरे पास यहां पर भी 2 हिंदी हैं, फिर यहाँ पॉलिटिकल साइंस है और यहां पर भी हिंदी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं हिंदी के केस में, बट जरूरी नहीं है ना कि वो सेम जी सब्जेक्ट सेम ही हो। यहाँ पर हिंदी ए बी कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ कोई हिंदी और तीसरा कोई सब्जेक्ट हो सकता है। सो बट यहाँ पर रिमेंबर कि इट हैज टू बी अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसमें इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, अगर सपोज आपके यहाँ पंजाबी हो सकता है, तो आप उनमें से कोई जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। एंड बी वेरी केयरफुल, बीए प्रोग्राम के केस के अंदर जनरल इलेक्टिव माइनर नहीं बनाता है। प्लीज नोट इट डाउन, जनरल इलेक्टिव का माइनर के साथ कोई रिलेशन नहीं है अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ ऑनर्स के केस में जनरल इलेक्टिव माइनर बनाता है। प्रोग्राम के केस के अंदर इट इज नॉट योर जनरल इलेक्टिव विच मेक्स योर माइनर, इट इज योर कोर सब्जेक्ट्स एज वेल एज डीएससी विच मेक्स अ माइनर। वो मैं आपको 6th सेमेस्टर के बाद बता दूंगा कि कैसे बन जाएगा। तो यहां पर माइनर सब्जेक्ट पहले 6 सेमेस्टर में ही बन चुका होता है। तो ये आपका जनरल इलेक्टिव हो गया। फिर अगेन ये जो कोर्सेज है ना, ये तीनों ऑनर्स की तरह है। इनफैक्ट आप ऑनर्स के साथ ही बैठे होंगे, आपके साथ में हो सकता है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हो, मैथ्स ऑनर्स का स्टूडेंट हो, कोई और ऑनर्स का स्टूडेंट हो। तो ये क्लासेस कॉमन क्लासेस हो सकती हैं जिसमें ऑनर्स और प्रोग्राम के स्टूडेंट साथ में बैठे हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स वर्क्स एग्जैक्टली लाइक जैसे मैंने आपको बताया फ्लिप मोड में, एक सेमेस्टर में लैंग्वेज, एक सेमेस्टर के अंदर एनवायरमेंट, तीसरे सेमेस्टर में फिर लैंग्वेज, चौथे सेमेस्टर के अंदर फिर एनवायरमेंट। स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन कोर्सेज अगेन आप अपने करियर के हिसाब से चूज कीजिए, जो आपको करियर में अच्छा लगता है उस हिसाब से आप स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज कर लीजिए। मैंने एक टाइपिफाइड लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपके साथ वो शेयर कर लूंगा, जिसमें मैंने डिवाइड किया हुआ है कि कौन सा कोर्स किस एरिया में आपको हेल्प कर सकता है, किस स्किल सेट में आपको हेल्प कर सकता है, वो मैं आपको शेयर कर लूंगा आपके साथ। एंड अगेन कोई अगर आपको कोर्स ऐसा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे जैसा आज की डेट में मेरे पास एक डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की है, बिकॉज आई न्यू दैट आज से अभी ऑलरेडी वर्ल्ड पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, तो आज से 5 साल बाद तो और भी ज़्यादा चलेगा। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, बाय फॉर दैट मैटर अगर आपके कॉलेज में पाइथन का कोर्स ऑफर नहीं होता है, तो यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम दी क्लस्टर सेंटर। मैं अभी आपको क्लस्टर्स के बारे में इन दी एंड आई विल टेल यू व्हाट दीस क्लस्टर्स आर। ठीक है, तो जैसे प्रोबेबली कमिंग लेटर समटाइम, अभी एक्सेल का एक कोर्स करा रहा हूँ। नेक्स्ट सेमेस्टर में आई टीच अ कोर्स ऑन पाइथन, एनालिटिक्स विद पाइथन, विच इज काइंड ऑफ अ कोर्स जो डेटा साइंस के लिए चाहिए होता है, डेटा एनालिटिक्स के लिए चाहिए होता है। तो हो सकता है मैं सिर्फ गार्गी कॉलेज में, बट इन अ क्लस्टर कॉलेज आई कैन टीच दैट कोर्स एंड यू कैन देन अटेंड माई क्लासेस ऑफ डेटा साइंस देयर। सो उस तरीके से यू कैन अटेंड दोज क्लासेस। ये जो डिटेल्स हैं ये आपका कॉलेज बताएगा कि ये कैसे वर्क करेगा। अभी थोड़ी सी और मोडालिटीज इनके ऊपर काम चल रहा है, बट इट इज पॉसिबल टू टेक कोर्सेज विच आर नॉट ऑफर्ड बाय योर कॉलेज, बट दे आर ऑफर्ड बाय द क्लस्टर कॉलेजेस। आई विल टेल यू अबाउट क्लस्टर्स कि आपके एरिया में कौन सा क्लस्टर है।
So these are very similar to what we have already discussed in case of honors courses. AEC, flip mode, skill enhancement course, skill build करने के लिए, और value addition course again values build करने के लिए आपकी लाइफ के अंदर वो courses हैं. Set of courses you can take any of them. These are of 2 credit each. Total आपके पास total 22 credit आ जाएंगे पहले सेमेस्टर से. Second semester looks exactly like the first semester. यहाँ पर again आपके पास 3 कोर. अगेन ये जो स्टूडेंट है ये क्या करेगा, 2 कोर ले लेगा इकोनॉमिक्स के, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में मेजर करना चाह रहा था. तो इकोनॉमिक्स का कोर 3, इकोनॉमिक्स का कोर 4, और पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड कोर है वो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड कोर सब्जेक्ट पढ़ लेगा. जनरल इलेक्टिव लैंग्वेज सब्जेक्ट, एईसी, एसईसी, वीएसी जैसा हमने पहले डिस्कस किया. तो टोटल फर्स्ट ईयर के बाद इस स्टूडेंट ने 44 क्रेडिट्स ले लिए. और अगर ये स्टूडेंट कहता है कि नाउ आई वांट टू लीव माय कॉलेज, then in that case the student will get a undergraduate certificate in the field of multidisciplinary study. This will be the name of the degree that the student will get. Undergraduate certificate in the field of multidisciplinary study. Why multidisciplinary? Because you are studying multiple disciplines here. So this is your first year. Let's look into the third semester. थर्ड सेमेस्टर में अगेन आप ये जो स्टूडेंट है ये 2 कोर पढ़ेगा अपने मेजर सब्जेक्ट के, और एक कोर पढ़ेगा अपने माइनर में. अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सपोज ये स्टूडेंट कहता है यार कि मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया पहले साल में मेजर, और मुझे अब इकोनॉमिक्स लग रहा है टफ. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको ऑफर करेगा कि डू यू वांट टू स्विच, क्या आप अपना मेजर और माइनर स्विच करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. अगर आप कहते हैं कि यार मुझे पॉलिटिकल साइंस में मेजर करना है, तो आप यहां पर इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के 2 सब्जेक्ट ले लीजिए और इकोनॉमिक्स का 1 सब्जेक्ट ले लीजिए. बट जो भी आप यहां चूज करेंगे, वॉट एवर यू चूज इन दी थर्ड सेमेस्टर, इफ यू प्लान टू कंटिन्यू with what you had chosen in the you had chosen in the first 2 semesters, if you plan to continue that, then in that case that will continue till the end of your course. If you plan to switch, then that will also be continued till the end of your 4 years. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चूज कर रहे हैं. यहां पर स्विच करने का सिर्फ एक ही मौका है, और यही है वो मौका होगा आपके पास. So I'll tell you more about it. मैं जब आपको फाइनल स्लाइड दिखाऊंगा तो अगेन मैं ये पॉइंट रिपीट करूंगा. फिर आपके पास जनरल इलेक्टिव है. जनरल इलेक्टिव अगेन पूल ऑफ लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी एक जनरल इलेक्टिव चूज कर लीजिए. एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, अगेन जो आपने पहले सेमेस्टर में एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स पढ़ा था वो सेम एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स आप वापस यहाँ पढ़ेंगे. एंड जैसे हमने देखा था ऑनर्स के केस में, एसईसी और आपकी इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट और कम्युनिटी आउटरीच के बीच में चॉइस है. उनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, और वैल्यू एडिशन कोर्स आपके पास ऑफर होगा एक लिस्ट. तो आपके पास टोटल यहां पर 7 सब्जेक्ट हो गए. टोटल 22 क्रेडिट आपको मिल रहे हैं आफ्टर थर्ड सेमेस्टर. और एग्जैक्टली सेम दिखता है आपका फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आपको वही 2 कोर. सपोज ये स्टूडेंट कहता है कि पॉलिटिकल साइंस में मैं इकोनॉमिक्स में मेजर करना चाह रहा था, तो इकोनॉमिक्स के अगेन कोर 7 एंड कोर 8, और पॉलिटिकल साइंस का चौथा कोर पढ़ लेगा. एंड जनरल इलेक्टिव लैंग्वेज एंड एईसी अगेन वो जो अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा वही सेम सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ रहा होगा. और स्किल एनहांसमेंट और इंटर्नशिप के बीच में चॉइस और वैल्यू एडिशन कोर्स. टोटल 22 क्रेडिट. इफ यू लुक एट द सेकेंड ईयर इन जनरल, आफ्टर सेकेंड ईयर you will get a undergraduate diploma degree in the field of multidisciplinary study. This is what you are going to get after second year if you plan to discontinue with your studies. Then let's look at the third year, fifth semester. अब फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पहली 3 चीजें तो वही चीजें कि ये स्टूडेंट अगेन 2 कोर पढ़ेगा अपने मेजर डिसिप्लिन के, 1 कोर पढ़ेगा माइनर डिसिप्लिन का. तो ये स्टूडेंट अगर इकोनॉमिक्स का था तो इकोनॉमिक्स के 2 कोर और 5th कोर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब यहां पर एक नई चीज आई. वो नई चीज क्या है? यहां पर अब स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन है कि उसको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लेना है. रिमेंबर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, उसका नाम ही क्या है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव. अपने ही डिसिप्लिन का इलेक्टिव लेना.
बट ये स्टूडेंट तो 2 डिसिप्लिन से है, इकोनॉमिक्स का भी और पॉलिटिकल साइंस का भी, तो उसके पास ऑप्शन आएगा कि इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से किसी भी एक मैं कोर सब्जेक्ट ले लूं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीए प्रोग्राम के हो तो प्लीज नोट दिस डाउन, आई विल रिपीट इट अगेन। आपको 5th और 6th सेमेस्टर में से, जब मैं आपको ये पूरा 3 ईयर का दिखाऊंगा, 3rd ईयर का दिखाऊंगा, 5th और 6th सेमेस्टर में से एक आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव अपने माइनर का लेना पड़ेगा। तो आपने अगर गलती कर दी कि आपने डीएससी 1 और डीएससी 2 दोनों अगर आपने इकोनॉमिक्स के ले लिए तो आप माइनर बना ही नहीं पाओगे। तो रिमेंबर कि आपको 5th और 6th सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर में आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव एक जो है वो आपको पॉलिटिकल साइंस का लेना ही पड़ेगा, अपने माइनर सब्जेक्ट का लेना पड़ेगा, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक अ माइनर। माइनर की रिक्वायरमेंट है कि एक डीएससी और 6 कोर, एक इलेक्टिव और 6 कोर के बेसिस के ऊपर आपका माइनर बनता है। ये मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा, बट ये मैं हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मुझे लगता है जैसे आपके प्रेफरेंसेस में आपने हो सकता है कई बार गलती करी हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर सकते हैं। तो जैसे आपके अभी इस वक्त पार्टिसिपेंट्स 49 है, जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, जिनको अभी लग रहा है कि ये जो है ये इतना नेसेसरी नहीं है, आई कैन टेल यू दैट आपके कॉलेज में कोई ना कोई तो ये गलती 100% करेगा कि उसने दोनों सब्जेक्ट जो है सेम सब्जेक्ट के ले लिए और उसके बाद वो रिग्रेट करेगा कि ये तो मेरा माइनर बना ही नहीं। सो मेक श्योर कि ये आप गलती ना करें। आप अपना एक जो है वो बी सब्जेक्ट का जरूर लें, अपने माइनर सब्जेक्ट का डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जरूर लें। फिर जनरल इलेक्टिव, अब यहां पर जनरल इलेक्टिव जो है ये आपके लैंग्वेजेस खत्म हो जाते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट का जनरल इलेक्टिव पढ़ सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स का पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना है, कॉमर्स का पढ़ना है, बीबी का पढ़ना है, मैथ्स का पढ़ना है, आपको जिस भी सब्जेक्ट का जनरल इलेक्टिव पढ़ना है आप उसका सब्जेक्ट जनरल इलेक्टिव पढ़ सकते हैं। और अगेन जैसा आपका 3rd ईयर 2nd ईयर में चल रहा था, स्किल एनहांसमेंट कोर्स और इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट और कम्युनिटी आउटरीच के बीच में चॉइस है। टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट वो जिनका 4 क्रेडिट्स हैं और एक सब्जेक्ट जिनका 2 क्रेडिट है, 22 क्रेडिट्स इन ऑल। 6th सेमेस्टर बिल्कुल 5th सेमेस्टर की तरह है, बट जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मेक श्योर कि 5th या 6th सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर में जरूर आप अपने माइनर का डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले लें। अगर आप नहीं लेंगे तो आप बाद में जाकर रिग्रेट करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस पर्टिकुलर मिस्टेक। देन उसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्स और आईपैक के बीच में अगेन चॉइस, ये आपको चॉइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और 3rd ईयर का अगर हम ओवरऑल वो देखें तो 3rd ईयर हमारा इस तरीके से दिख रहा है। 3rd ईयर के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी बैचलर इन द फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। रिमेंबर, अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए डिस्पाइट बीइंग बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट, तो आपको 3 साल में नहीं छोड़ना है कॉलेज। आप 3 साल बाद छोड़ोगे तो आपको बैचलर इन द फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का मिलेगा। इट विल बी अ सिमिलर काइंड ऑफ अ डिग्री जो आपके सीनियर्स को भी मिल रही है, तो वो बीए प्रोग्राम की तरीके की डिग्री मिलेगी आपको। ओनली इफ यू गो इनटू द 4th ईयर तब आपको ऑनर्स की डिग्री मिल सकती है। सो लेट्स सी व्हाट दिस 4th ईयर लुक्स लाइक। Let's see what this 4th year looks like. Let's see the 7th semester. 7th semester के अंदर अब आपको एक कोर पढ़ना है। अब वो कोर किसका पढ़ना है? जिसमें आपने मेजर किया है। तो सपोज ये स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में मेजर कर रहा था तो वो इकोनॉमिक्स का कोर पढ़ेगा एक, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 3 और 2 जीई के बीच में चॉइस, जैसा ऑनर्स में चॉइस थी वैसे ही यहां पर चॉइस है कि 3 इकोनॉमिक्स के इलेक्टिव्स पढ़ सकता है या फिर 2 जीई ले सकता है। यहां पर सेंस यूजुअली यही बनेगा, अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरफ जाना है तो आप तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले लो, सो दैट यू बिकम रियली क्लोज टू एन इकोनॉमिक्स ऑनर्स डिग्री, और फिर आप उस बच्चे के साथ कंपीट कर सकते हैं मास्टर्स की डिग्री के लिए, मास्टर्स के एंट्रेंसेस के लिए। उस सब बच्चे के साथ आप कंपीट कर सकते हैं यूपीएससी में ऑप्शनल के लिए। तो इसीलिए मेरा जो आपका अगर मैं क्योंकि मेरा यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूपीएससी सेंट्रिक होते हैं, तो इसीलिए मेरा ज़्यादा अटेंशन उसकी तरफ रहता है। बट यू कैन थिंक ऑफ योर ओन एग्जाम्पल। तो अगर आपको उस सब्जेक्ट के ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं पढ़ने हैं तो आप जनरल इलेक्टिव ले लीजिए। सपोज मुझे ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़नी नहीं है, मुझे से
मार्केटिंग पढ़नी है या मुझे कोडिंग पढ़नी है, तो मैं वो फिर जीईज ले लूँगा, जो भी अगर कोई जीई ऑफर हो रहा होगा। सो अगेन यहाँ पर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपको 3 चूज करने हैं। एंड आपके पास फिर जैसे ऑनर्स के केस में है, यहाँ पर आपके पास डेजर्टेशन का ऑप्शन है। और जैसे ऑनर्स के केस में था, यहाँ पर डेजर्टेशन आप मेजर माइनर में कर सकते हैं या प्रोजेक्ट, जस्ट सेकंड फोक्स, माय बैटरी इज ड्रेन्ड आउट। सो आप मेजर या माइनर के अंदर कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मेजर और माइनर में क्यों आपको मेजर में अपनी वो लिखनी चाहिए, आपको अपनी डेजर्टेशन लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कहीं पर भी शॉर्टफॉल आ रहा होगा तो वो मेजर पूरी कर देगा। ठीक है, वो ये पूरी कर देगा, अभी मैं आपको बताऊंगा वो चीज़। तो आप अपना डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और वही डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट जो है वो आपका 8th सेमेस्टर में भी कंटिन्यू होगा। तो 8th सेमेस्टर में बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा आपको, एग्जैक्टली दी सेम। तो अगर हम 4th ईयर देखें तो 4th ईयर में ये आपने डेजर्टेशन यहाँ लिखी और वही कंटिन्यू आपकी यहाँ पर भी हो गई। टोटल आपके पास वही 176 क्रेडिट्स। एंड कैन यू लुक एट दिस नाउ, अब 4 साल बाद जो आपको डिग्री मिल रही है वो मिल रही है बैचलर इन द फील्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑनर्स। तो आपको 4 साल बाद ऑनर्स की डिग्री मिल गई है रादर दैन प्रोग्राम की डिग्री। लेट मी एक्सप्लेन दी 7th सेमेस्टर अगेन। आपको 7th सेमेस्टर किसी ने पूछा है, तो 7th सेमेस्टर के अंदर आपने एक तो कोर पढ़ा अपना इकोनॉमिक, आपने उसी सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने मेजर किया है, और 3 आपके पास ऑप्शन है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के, इकोनॉमिक्स के ही होंगे वो। अगर आप इकोनॉमिक्स में मेजर कर रहे हैं तो ये 3 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के और 2 जीई के बीच में चॉइस है। तो टोटल 5 में से 3 लेने हैं। एंड आई वाज टेलिंग गुरलीन, व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि आपको अपने करियर के हिसाब से सोचना है। तो सपोज मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी थी बट मैं बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स में हूं, तो मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज 2 जीईज मैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लूंगा। और रिमेंबर, जीई का कोई मतलब ही नहीं है इन केस ऑफ बीए प्रोग्राम, क्योंकि वो आपका मेजर माइनर नहीं बनाता, जीई नहीं बनाता। जैसे ऑनर्स में जीई जो है वो माइनर बना रहा था, प्रोग्राम के केस में ऐसा नहीं है। प्रोग्राम के केस में मैं अभी बताऊंगा माइनर कैसे बनेगा। तो इसलिए सेंस, मेरे हिसाब से जो सेंस बनता है वो ये बनता है कि आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले लीजिए तीनों के तीनों। बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, डोंट गेट फ्रेड बाय व्हाट आई एम सेइंग, ये चॉइस आपकी खुद की होनी चाहिए। ठीक है, सो वन क्वेश्चन, मैं अभी एक क्वेश्चन आंसर करूंगा यशस्वी, मैं अभी 2 मिनट में जैसे ही खत्म कर लेता हूँ, I'll स्टार्ट विद योर क्वेश्चन। सो ये आपका टोटल हो गया 4th ईयर। 4th ईयर के बाद what I want to highlight is that you get an honors degree rather than a program degree. Now let us see the modalities before I take certain questions. Let us see the modalities of major and minor. और यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है ये चीज़ें, मैं आपको ऑलरेडी साथ साथ बताता हुआ गया हूँ, बट यहाँ पर अब मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ। अगर आपको माइनर डिग्री बनानी है तो माइनर डिग्री बनाने के लिए आपको 6 कोर पढ़ने हैं उस सब्जेक्ट में और 1 डीएससी पढ़ना है, टू बी फुलफिल्ड इन दी फर्स्ट 6 सेमेस्टर्स। क्योंकि आप जो अपना माइनर वाला जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ पहले 6 सेमेस्टर में ही पढ़ रहे हो। तो इफ यू सी दिस, लेट मी गो बैक एंड शो इट टू यू। इफ यू सी दिस 3rd ईयर अगर हम देखें तो कैन यू सी कि यहां तक हमने 6 कोर पढ़ लिए थे पॉलिटिकल साइंस के, क्योंकि हर सेमेस्टर में 1 माइनर 6 सेमेस्टर में 6 माइनर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि यहां पर 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में से 1 डीएससी आप जरूर अपना पॉलिटिकल साइंस बी सब्जेक्ट का माइनर वाले का ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिया तो आप माइनर नहीं बना पाओगे। यही मैं आपको यहां पर बता रहा था कि 6 कोर और 1 डीएस विच हैज टू बी मेंटेन इन द फर्स्ट 6 सेमेस्टर। टोटल 7 पेपर हो गए into 4 credit of each paper. The requirement should be achieved by 6th semester. One has to take discipline B, DSE either in semester 5th or semester 6th to qualify for minor in discipline B. The concept of minor is only relevant when there is a major. अब यहां पर हम मेजर समझते हैं। माइनर ये हो गया, अब मेजर कैसे बनेगा। अब मेजर ऑनर्स के केस में तो बड़ा सिंपल था। ऑनर्स के केस में तो आपने सारे सेमेस्टर पढ़ते गए तो अपने आप ही मेजर बन गया। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट जिसने फ्लिप कर दिया 3rd सेमेस्टर के अंदर। अब मेजर बनाने के लिए आपको टोटल चाहिए 80 क्रेडिट। अब 80 क्रेडिट आप तोड़ मरोड़ के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दिस कुड बी अ गुड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन इन इटसेल्फ, कि इन व्हाट ऑल वेज कैन अ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन मेक अ मेजर।
ठीक है, ये अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है या स्टैट्स का स्टूडेंट है, आई विल गिव यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर एज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन. सो let me give you a brief of कि ये कैसे बनेगा, ये 80 क्रेडिट कैसे बन सकते हैं. हम ये जो स्टूडेंट था अगर ये 4 साल कंप्लीट करता है, आई विल डू राइट आफ्टर दैट संस्कृति आई विल डू बीकॉम प्रोग्राम. ठीक है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बाय द वे. नाउ अगर कोई स्टूडेंट 4 साल डिग्री करता है तो उसका मेजर कैसे बनेगा? उसका मेजर बनेगा उसने 14 सब्जेक्ट जो है वो कोर के पढ़ लिया. अब वो 14 सब्जेक्ट कोर के कैसे पढ़ता है? लेट अस सी दैट. जब आपने यहां तक आपने डिग्री कंप्लीट करी तो आपने पहले 3 साल में 6 सेमेस्टर्स में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे कोर के, और एक कोर आपने 13th और 14th पढ़ लिया यहां पर, तो 14 कोर ये हो गए. फिर ये कहता है कि 14 कोर तो ये हो गए, तो 14 इंटू 4 56 क्रेडिट्स तो आपके यहां हो गए. दैट मीन्स अभी भी 24 क्रेडिट पढ़े हुए. ये समझ में आया? मैथ्स समझ में आया? मैं जल्दी से मैथ्स कर दिया. 14 ये और 4 हर जो कोर है उसका वेटेज कितना है? 4 क्रेडिट का, तो टोटल 56 हो गया. मुझे बनाने कितने हैं? 80 बनाने हैं. तो मेरा शॉर्टफॉल कितना रह गया? 24 का. तो दैट मीन्स अगर मैं 6 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले लूं और ऑफ इकोनॉमिक्स, और 6 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कैसे ले सकता हूं? 6 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले सकता हूं, यहां पर 3 और यहां पर 3 हो गए 6. या फिर मैंने पहले जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के बीच में और जीई के बीच में चॉइस आई थी तब मैं वहां पर चॉइस ले सकता था, बट मैंने सपोज वहां पर जीई लिया, यहां पर मैंने ले लिया 3 ये और 3 ये, तो मेरे पास हो गए 6 इलेक्टिव, और 6 ये 14 ये, टोटल हो गए 20 इंटू 4 80. तो टोटल आपके पास 80 क्रेडिट्स बन जाएंगे इस तरीके से. तो आपके पास बन गया मेजर इन इकोनॉमिक्स. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि सपोज आपने जो कोर पढ़े, सपोज वो स्टूडेंट वो था जिसने फ्लिप किया था, तो अगर फ्लिप किया था तो उसके पास 14 तो नहीं हो सकता, उसके पास तो सिर्फ 12 होंगे इन दैट केस. तो 12 इंटू 4 48 हुए उसके पास, तो अभी भी उसको 32 क्रेडिट्स बनाने हैं. अब वो 32 क्रेडिट्स कैसे बनेंगे? तो उसके लिए उसको वो क्या कर सकता है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले सकता है. 8 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव. 8 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कैसे ले सकता है? लेट मी शो इट टू यू कि यहां पर भी इकोनॉमिक्स का लिया और यहां पर भी इकोनॉमिक्स का लिया. बट ये अगर आपने गलती कर दी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो दिक्कत ये हो जाएगी तो आप माइनर नहीं बना पाओगे, तो आपको ये भी चीज नहीं करनी. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, आपको 8 तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने 8 ले लिए तो दैट मीन्स आप माइनर नहीं बना रहे हो. सो व्हाट यू कैन डू इज पिक अप 7 फ्रॉम हेयर एंड यू कैन ऑल्सो एड डेजर्टेशन. सो what you can do is that आपने जितने भी कोर पढ़े, सपोज आपने 12 कोर पढ़े, ये तो मिनिमम 12 कोर तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, 4 साल में, तो 48 क्रेडिट वहां से आ गए. आपने 7 क्रेडिट ले लिए, 7 आपने ले लिए इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ठीक है, तो ये आपके हो गए 28 और 48 ये आपके पास पहुंच गए. फिर अभी भी आपके पास शॉर्टफॉल बच गया बाय द वे, शॉर्टफॉल 4 का अभी भी आपके पास है. तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट अ डेजर्टेशन इन मेजर. अब आप क्या करो, अब आप इकोनॉमिक्स के अंदर अब अपनी मेजर डिसिप्लिन लिख दो, अब अपना डेजर्टेशन लिख लो, और उससे आपके पास 12 क्रेडिट और आ जाएंगे. तो आपके पास 80 से तो ज्यादा ही हो गया, आपके पास 76 ऑलरेडी बन रहे थे, आपने 12 और ऐड कर दिए, तो आपने तो 88 क्रेडिट्स बना दिए इनफैक्ट. सो बट कहीं पर भी शॉर्टफॉल है, सपोज आपके डीएससी भी कम थे, सपोज आपने 48 ये पढ़े, 12 का आपने अपने 6 + 6 12 का आपने डेजर्टेशन लिख लिया, टोटल 60. तो फिर आपको पास सिर्फ 5 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लेने हैं आपको इकोनॉमिक्स के, सो एज टू मेक टोटल 80 क्रेडिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. बट रिमेंबर फोक्स, ये आपके पास ऑप्शन तभी होगा जब आप डेजर्टेशन लिखोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है. सो अगर आप फ्लिप कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम रह जाएंगे, आपके पास डेजर्टेशन फिर आपको उसी सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा जिसमें आपने फ्लिप किया है, ध्यान रखना इस चीज का. देन अब डिग्रीज, अच्छा ये मैं आपको बता रहा था, ये वाला पॉइंट देख लो, स्विच बिटवीन डिसिप्लिन 1 एंड डिसिप्लिन 2. अ स्टूडेंट हु स्टडीज 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर ऑफ डिसिप्लिन ए, जैसे इकोनॉमिक्स का पढ़ा, एंड 1 ऑफ डिसिप्लिन बी, सपोज पॉलिटिकल साइंस, हैज टू रिटेन द सेम पैटर्न इन सेमेस्टर 2. तो सेमेस्टर 2 के अंदर भी आपको सेम ही पढ़ना पड़ेगा. However, in semester 3, the student can switch between discipline 1 and discipline 2. discipline B और discipline A में switch कर सकते हैं कि 2 आपने B के पढ़ लिया और 1 A का पढ़ लिया.
but whatever you choose in the third semester will stay with you till semester 8. तो जो भी आपने थर्ड सेमेस्टर में चूज किया वही अब आपके पास रहेगा. तो स्विच करने से पहले 4 बार सोच लेना कि क्यों स्विच कर रहे हो. देन उसके बाद अगर आप 4 साल की डिग्री करते हो और आपके पास मेजर और माइनर नहीं है तो आपके पास डिग्री का नाम क्या होगा? बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज, ये आपकी डिग्री का नाम होगा. अगर आप मेजर और माइनर बना लेते हो तो आपकी डिग्री का क्या नाम होगा? बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स में मेजर और पॉलिटिकल साइंस में माइनर, एज इंडिकेटेड इन योर मार्कशीट. अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा बैचलर इन फील्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, ऑनर्स विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप. एंड जो मैं आपको लैंग्वेज का बता रहा था, दैट लैंग्वेज इज इन सेमेस्टर, लैंग्वेज 1, 2, 3, 4 ऑफर्ड इन सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 आर कोर्सेज ऑफ 2 डिफरेंट लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि आप 5-4 डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ रहे हो, आप 2 ही डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ोगे, वन ऑफ विच हैज टू बी एन इंडियन लैंग्वेज. तो आप पंजाबी पढ़ो, जो भी आपके इंडियन शेड्यूल, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल पढ़ोगे तो उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो. बट अगेन वो अगर आपके पास ऑफर नहीं हो रहा तो आप क्लस्टर कॉलेजेस के पास जा सकते हो पढ़ने के लिए. तो आप कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज या दोनों इंडियन लैंग्वेज भी ले सकते हो, एंड आपको 2-2 कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे उन लैंग्वेजेस के. तो सपोज आपने इंग्लिश और हिंदी लिया तो 2 कोर्स हिंदी के और 2 कोर्स इंग्लिश के आपको पढ़ने हैं. हिंदी और पंजाबी लिया, 2 कोर्स हिंदी के और 2 कोर्स पंजाबी के आपको पढ़ने हैं. और मैक्सिमम और मिनिमम वही 26 और 20 और 18 का है कि आप मैक्सिमम 26 क्रेडिट्स ले सकते हो एक सेमेस्टर में और मिनिमम 18 ले सकते हो. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ बीकॉम प्रोग्राम. बीकॉम प्रोग्राम के अंदर क्या होता है? बीकॉम प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक चेंज आता है. बीकॉम प्रोग्राम के अंदर सिर्फ आपको एक चेंज मिलेगा. वो चेंज क्या है कि ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, यहां पर क्या था, कोर 1, पहले 2 इकोनॉमिक्स के और एक जो कोर था वो था पॉलिटिकल साइंस का. इन बीकॉम प्रोग्राम ये तीनों के तीनों कोर कॉमर्स के होंगे, कॉमर्स या अलाइड सब्जेक्ट. अब ये अलाइड सब्जेक्ट रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी का कि अलाइड सब्जेक्ट क्या है. नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो अलाइड सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स ले सकते हो नहीं ले सकते हो, बट इट सेज अलाइड सब्जेक्ट्स. अब ये क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको, ये मैंने संस्कृति बीकॉम प्रोग्राम की अलग स्लाइड नहीं बनाई हुई बिकॉज बाकी सब कुछ सेम है. ऑल आई वॉन्ट यू टू इमेजिन इज कि ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं आपके वो कॉमर्स के हैं. इन दैट केस 4 साल बाद आपको बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिल रही है और आप माइनर नहीं बना पा रहे हो. अब वो माइनर क्यों नहीं बना पा रहे हो? वो इसलिए है क्योंकि आपके पास यहाँ पर माइनर का सब्जेक्ट ही नहीं है. अगर आप तीनों सब्जेक्ट, पहला भी कॉमर्स का पढ़ रहे हो, दूसरा भी कॉमर्स का पढ़ रहे हो, तीसरा भी कॉमर्स का पढ़ रहे हो, तो आप माइनर कैसे बना रहे हो? तो इसीलिए ये अभी यूनिवर्सिटी से और क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है कि अगर आप अलाइड सब्जेक्ट लेते हो तो वो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो. ये रिसेंटली, वेरी रिसेंटली देयर इज दिस न्यू फ्लो चार्ट जो यूनिवर्सिटी से आया है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ. बट अगर आप कॉमर्स की वेबसाइट पे जाओगे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे, तो वहां पे लिखा होगा कोर 1 कॉमर्स, कोर 2 कॉमर्स, कोर 3 भी कॉमर्स. तो आप टिल 3rd ईयर आपने यहां पर सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जितने भी ये तीनों कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे आप कॉमर्स के पढ़े जा रहे हो. और इनफैक्ट यहां पर भी 4th ईयर के अंदर भी ये वाले जो कोर हैं ये भी आप कॉमर्स के ही पढ़ रहे हो अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स डिपार्टमेंट सिलेबस. आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेक कि अब उसमें जो नया पैटर्न है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अलाइड सब्जेक्ट, बट वो अलाइड सब्जेक्ट का कंफ्यूजन अभी भी है. बट इफ यू फॉलो व्हाट इज गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वो कहता है कि आप कॉमर्स ही पढ़ोगे, आप कोई और सब्जेक्ट कोर में नहीं पढ़ोगे सिवाय कॉमर्स के. एंड इफ दैट इज ट्रू देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ माइनर सब्जेक्ट, यू आर ओनली गोइंग टू मेक ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स. आपको 4 साल बाद बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन इन दी UGCF डॉक्यूमेंट. इन माई पर्सनल ओपिनियन देयर इज मोर क्लैरिटी हैज टू कम ऑन दिस कि आप मेजर और माइनर क्यों नहीं बनाने दे रहे हो आप इनको. ठीक है. देन ओके, नाउ लेट मी टेक क्वेश्चन. सो द ओनली चेंज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हियर इज कि बाकी सारी चीजें सेम है फोक्स, सब कुछ सेम है. बाकी सारा यही GE पढ़ोगे आप लैंग्वेज, यही पूल ऑफ लैंग्वेजेस, बाकी सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इन केस ऑफ कॉमर्स ये तीनों सब्जेक्ट कॉमर्स के होंगे. डिसिप्लिन A और B कुछ नहीं रह जाएगा, सारा कॉमर्स 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 चलेगा. नाउ लेट मी टेक द क्वेश्चंस फर्स्ट. अच्छा, मैं आपको एक बार क्लस्टर्स के बारे में और बता दूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं, और फिर मैं आपके साथ ये भी आई वांट टू डील विद दिस एज वेल. लेट अस सी दीज क्लस्टर्स. अगर आप ये क्लस्टर कॉलेजेस देखोगे
तो क्लस्टर कॉलेजेस में आपका कॉलेज जो है श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज जो है ये सेंट्रल क्लस्टर में आता है, और इसका जो नोडल हेड है वो जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज है, और जो सब नोडल है वो जाकिर हुसैन डे कॉलेज है। तो उसके हिसाब से आप इन जो जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज या जाकिर हुसैन कॉलेज जो कोर्सेज ऑफर करेगा वो आप ले सकते हैं, बट उसकी मोडालिटीज अभी भी वो नोडल आपके जो कॉलेज में जो नोडल ऑफिसर हैं, हर कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर होगा, तो वो नोडल ऑफिसर जो है आपको बता देंगे कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और किस तरीके से उनका टाइम टेबल सेट होगा, कि वो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, किस तरीके से वो कोर्सेज होंगे। जो आपके कॉलेज में कोर्स ऑफर नहीं हो रहा बट ये नोडल जो क्लस्टर कॉलेजेस हैं वो ऑफर कर रहे हैं, तो वो कैसे आप ले सकते हैं। लेट मी जस्ट डिस्कस दीज SGPAs एंड CGPAs। ये मैं एक बार बस आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ क्या है, फिर मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन ले लूंगा। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके 90% एंड प्लस आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिलता है और उसको मिलते हैं 10 पॉइंट, और हर सब्जेक्ट का एक वेट है। सपोज हमारा जो कोर सब्जेक्ट था उसका वेट 4 था, रिमेंबर 4 को उसका क्रेडिट वेट कितना था 4, और SEC का कितना था 2। तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स कितने मिल सकते हैं? GE और आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स हैं उनका वेट 4 है, तो 4 into 10 मैक्सिमम क्रेडिट 10 ही मिल सकता है, किसी के 90% से ज्यादा ही आ सकते हैं, तो उसको जो मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं वो 40 मिल सकते हैं। अगर उसके आए 80 से 90 के बीच में, तो उसको जो पॉइंट्स मिलेंगे 9 into 4 जो 4 क्रेडिट से है, और अगर वो 2 क्रेडिट्स वाला है तो 9 into 2 18 मिलेंगे, अगर वो 2 क्रेडिट्स का है तो 9 into 2 10 into 2 20 क्रेडिट्स मिलेंगे, और अगर 4 का है तो 9 into 4 मिल जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे कि उस कोर्स की वेटेज कितनी है, तो 70 और 80 के बीच में 8 पॉइंट मिलता है, 60 से 70 के बीच में 7, और अगर आप बिलो 40 हो तो आपको 0 मिल रहा है, क्योंकि आपको वो पेपर फिर से रिपीट करना है। ठीक है, तो टोटल आपको हर सेमेस्टर के अंदर, अगर आप मान लो टोटल 22 टोटल हमारे क्रेडिट पॉइंट्स थे, तो किसी सब्जेक्ट में सपोज कोई बहुत अच्छा टॉपर स्टूडेंट था तो उसको हर सब्जेक्ट में 10 10 10 10 मिला, तो मैक्सिमम जो आपको स्कोर मिलेगा वो मिलेगा 220 इन अ पर्टिकुलर। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट मिल गया आपको, जिसने सारे सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स में टॉप किया, सारे सब्जेक्ट्स में उसके 100% 90% प्लस है, तो उस स्टूडेंट को 8 सेमेस्टर के बाद में 1760 क्रेडिट्स मिलेंगे, और 1760 अपॉन 1760 उसको 10 CGPA मिल जाएगा। सपोज आपका मान लो सेमेस्टर 1 में टोटल जो आपका जो क्रेडिट्स आया वो आया 200, और मैक्सिमम कितना है 220, तो 200 अपॉन 220 विच इज 9, तो आपका 9 SGPA बन जाता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। और इनको आप ऐड करते रहोगे तो टोटल 8 सेमेस्टर बाद आपका CGPA बन जाएगा, और यही CGPA जब आपका 7.9 से ज्यादा होगा तो आप PhD डायरेक्टली कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक क्वेश्चंस, now this is the group that I was talking about before I take questions. This is the group that I was talking about, that this is the group where I keep sending a lot of articles. Every morning I send articles. You can be a part of this group. You can just scan this particular code. This is a group that I created 6 years ago, and इस group से बहुत सारे लोग IAS बन चुके हैं। But all I do is I just give articles, Indian Express, Hindu के articles भेजता हूँ. You can read those articles in the morning. It's a very strong group that is there, and these are my contact details. Now before I take any questions, now I'll take all the questions that you have. Let's take these questions one by one. पहले हम उससे शुरू करते हैं जहाँ से will a student be eligible, वो मैंने आपको बता दिया था। BCom प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, संस्कृति BCom प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है BA प्रोग्राम में और BCom प्रोग्राम में, एक्सेप्ट कि आपके तीनों जो डिसिप्लिन होंगे, तीनों जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कॉमर्स के ही हैं अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स डिपार्टमेंट। आई एम नॉट श्योर कि वेदर यू कैन टेक इकोनॉमिक्स और नॉट, दैट क्लैरिटी हैज टू कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो नया एक डॉक्यूमेंट लिखा है उसमें अलाइड सब्जेक्ट्स लिखा है, मैं मीना मैम के साथ शेयर कर दूंगा। वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इन माय ओपिनियन, ठीक है। देन सर 2 कोर्सेज इन सेम लैंग्वेज लेने का कोई फायदा, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, 2 कोर्सेज इन सेम लैंग्वेज का क्या मतलब है, ठीक है। देन BCom का स्लाइड नहीं है यहाँ पर बिकॉज सेम चीज़ है।
Sir, I'm from BCom, BSc Maths Honors. My minor is Economics. My questions are, how can I do major and minor both? आप मेजर और माइनर कैसे बनाओगे? आप पहले 6 सेमेस्टर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? हर सेमेस्टर में एक माइनर लेना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है? इन बोथ. अब मुझे ये क्वेश्चन मुझे बताओ कि आप मेजर और माइनर किस में बनाना चाह रहे हो. सपोज मैं कहता हूँ आप इकोनॉमिक्स में माइनर बनाना चाहते हो, तो आपको हर सेमेस्टर पहले 6 सेमेस्टर में 6 आपको कोर लेने हैं माइनर के, और सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में एक डीएसई इलेक्टिव लेना है इकोनॉमिक्स का. सिमिलरली मेजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हर सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे. पहले 6 सेमेस्टर्स के अंदर आपको मैथ्स के 2-2 कोर, फिर उसके बाद मैथ्स के आपको आगे जाके डेजर्टेशन लिख सकते हो, या फिर आप 6 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स ले लीजिए मैथ्स के, तो भी आपके 80 क्रेडिट पॉइंट्स बन जाएंगे. तो इस तरीके से यू कैन मेक इट. ऑनर्स की डिग्री आपको तब मिलेगी जब आपके पास जब आपने 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लोगे और रिसर्च वर्क कर लोगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, मैथ्स के अंदर, तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी. 1 सेमेस्टर इज ऑफ. अजय, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने का, क्योंकि कोविड हैज़ थ्रोन अस आउट ऑफ सिंक. तो आपका ये सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा मार्च, आई थिंक फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स हैं, और मार्च 20th को शायद से नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो रहा है, और फिर उसके बाद वो सिंक में आना शुरू होगा क्योंकि जुलाई तक चलेगा. तो पहला सेमेस्टर थोड़ा सा क्रैम्प्ड अप है, फिर उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर थोड़ा सा रिलैक्स है, और फिर उसके बाद नेचुरल जो आपका जिस तरीके से यूनिवर्सिटी एडमिशन्स करती है वैसे ही चलेगा. Yes, you will complete your first year in 8 months itself. Devansh, this PPT is proprietary. Then link of the group. अच्छा, मैं आपके साथ, give me 1 second. मैं आपको चैट विंडो में मैंने लिंक डाल दिया है. अगर ये ग्रुप फुल हो जाए, क्योंकि ये ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, तो यू कैन ज्वाइन सम अदर ग्रुप. मैं आपको दूसरे ग्रुप का भी लिंक भेज दूंगा फिर, क्योंकि हर एक ग्रुप में 500 स्टूडेंट्स ही अलाउड है. Then let me talk about Yashvi Pathak. End of 4 years, will I get honors degree? Yes, you will get honors degree with the major and minor. It is an interdisciplinary degree that you will get with a major and a minor. ठीक है, it will be an interdisciplinary honors degree. इसका नाम ये है interdisciplinary honors degree with major and minor. Then बीकॉम के साथ सीए पॉसिबल है, ये तो आपको शायद से अलाउ नहीं करते सीए वाले. यस, आइडली यू विल गेट एन ऑनर्स डिग्री, बीकॉम ऑनर्स डिग्री. रिसर्च आप बोथ में भी इंटरडिसिप्लिनरी कर सकते हो, बट रिमेंबर इन दैट केस आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने स्विच नहीं करा है, तभी आपके 80 पॉइंट बनेंगे. क्योंकि अगर आपको इंटरडिसिप्लिनरी लिखना है तो इंटरडिसिप्लिनरी विल ओनली बी पॉसिबल, और आपको मेजर डिग्री तभी मिलेगी जब आपने डीएस इलेक्टिव से और कोर्स से अपने 80 क्रेडिट पॉइंट बनाए हैं. तो ध्यान रखना है इस चीज़ का. माई नंबर इज हेयर जस्ट इन केस इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी. ये नंबर गलत है, सॉरी फोक्स, ये 444111. आई जस्ट राइट डाउन माई नंबर ही गलत चला गया है. माई नंबर इज 9899444111. यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, वो 4 नहीं है, 3 ही 4 हैं. बट प्लीज़ इफ़ यू आर मैसेजिंग मी यू हैव टू होल्ड ऑन कि मैं रिप्लाई थोड़े टाइम बाद करता हूँ, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन माई व्हाट्सएप. सो डोंट बी सरप्राइज कि अगर मैं 2 दिन बाद रिप्लाई कर रहा हूँ तो. सो देन will I be eligible? You will be eligible if you reach that particular age, यशस्वी. आफ्टर, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी कहता है कि अगस्त में आपको 21 हो जाने चाहिए, तो अगर आप 21 हो रहे हो तो ठीक है, तो उनको कोई मतलब नहीं है. बट अगर आप 2 साल की डिग्री कर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, तो यूपीएससी नहीं मानेगा फिर. कैन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? वेल, इट्स अ डिबेटेबल थिंग. इफ यू वांट यू कैन डू दैट. But you have to have right kind of guidance, I would say. Then can we take 2 discipline specific electives and 1, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन तुषार. 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और मेजर इलेक्टिव क्यों लेना चाह रहे हो सेमेस्टर 7 में? अच्छा, सेमेस्टर 7 में 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव नहीं, यू कांट डू दैट. यू कैन ओनली टेक इट इन योर मेजर सब्जेक्ट. तो सपोज आप पॉलिटिकल साइंस में मेजर कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस के ही आप वो लेगो. आप वो ऑनर्स वाले से कंफ्यूज मत करो, ठीक है. आपको जी लेना है तो आप जी ले सकते हो फिर हिस्ट्री का, बट आपको इलेक्टिव तो आपको वही लेने पड़ेंगे जो आपके मेजर वाले सब्जेक्ट हैं. जीई और
डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में ये फ़र्क है कि जीई जो होता है वो आपका इंटर डिसिप्लिनरी होता है, ठीक है, कि आप किसी और डिसिप्लिन का यूजुअली लेते हो, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया उसी का लेते हो। तो सपोज आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लिया है तो आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का ही लोगे, और जीई आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा किसी और का ले सकते हो। बट प्रोग्राम के केस में क्या होगा, प्रोग्राम के केस में आप डीएस डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव उसी का लोगे जिसमें आपने एडमिशन लिया, जैसे इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस में आपने एडमिशन लिया तो उन्हीं का लोगे, और जीई जो है वो किसी का भी ले सकते हो। पहले 4 सेमेस्टर में तो लैंग्वेज ही लेनी है, बट उसके बाद जो है आप किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? परस्यूइंग मैथ्स ऑनर्स, Recording stopped. आई एम परस्यूइंग मैथ्स ऑनर्स एंड फर्दर आई वांट टू डू यूपीएससी। आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि आपके कॉलेज में ज्योग्राफी ऑफर होता है नहीं होता। ज्योग्राफी वुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन। व्हाट एल्स? इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। आई वुड पर्सनली से इकोनॉमिक्स। मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा जाता है। सो और इकोनॉमिक्स मैंडेटरी भी है यूपीएससी में। तो आप पहले सेमेस्टर में माइक्रो, दूसरे सेमेस्टर में मैक्रो, फिर उसके बाद आप इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ये सारे पेपर्स ले लीजिए जी के। वॉट आर वी गोइंग टू डू ऑफ रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस? यू आर गोइंग टू राइट पेपर्स। जो आपके टीचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिखते हैं वैसे आप पेपर लिखोगे। सपोज से इलेक्शंस इन, आपको रिसर्च टॉपिक बता सकता हूँ, जैसे द हिस्ट्री ऑफ एमसीडी इलेक्शंस इन दिल्ली। यू कैन दैट कुड बी अ रिसर्च पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। तो इस तरीके आपको अपने डोमेन में सोचने पड़ेंगे रिसर्च एरियाज कौन कौन से। मैं आपको इकोनॉमिक्स का बहुत सारे बता सकता हूँ, बट आपको खुद ही सोचने हैं सारे। एनीथिंग एल्स? एनी अदर क्वेश्चंस फॉर? अगर आपने एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मेजर और माइनर नहीं बनाया 4 साल में बीए प्रोग्राम में, देन विच डिग्री विल गेट? यू विल सिंपल गेट अ डिग्री विच इज बैचलर इन द फील्ड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। दैट विल बी द डिग्री। ये मैं आपको डिग्री भी दिखा देता हूँ। ये रहा आपका, ये आपके आ गई बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस। तो ऑनर्स की डिग्री मिल रही है, बट ऑनर्स की है बट सोशल साइंसेस की है, मेजर और माइनर नहीं लिखा हुआ। देन बिटवीन डिजिटल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर सीएस, आई वुड से फाइनेंशियल लिटरेसी ले सकते हो। दीज आर पर्सनल क्वेश्चंस, बट ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी ले लो। लास्ट क्वेश्चन फोक्स, एनी लास्ट क्वेश्चन दैट यू हैव? देन आई विल हैंड ओवर टू मैम and she can probably end the session. Okay folks, that is from my side. Ma'am, I hand over to you for further anything that you would like me to add. Thank you so much, Siddharth. Meena ma'am, are you there? Yes, I'm here. Okay. So I think I should do the formal thanks now, right? Yes. So, on behalf of Shri Guru Nanak Dev Khalsa College, I am grateful to Siddharth for such a comprehensive presentation of NEP. It was so kind of you that you spare your time to refine our students with a detailed NEP structure, including the clusters and the grading system, which was very much needed for them. I presume that the students have understood the mathematics of credits, and on the basis of their chosen courses, including that GE, BSc and SEC, they can design their own degrees. Thank you, Siddharth. Thank you once again. It was very comprehensive presentation. Really, I too liked it very much. Thank you very much, So ma'am. I would also like to thank all the faculty members and my dear students who have joined us for today's session. And I request you all to fill the feedback form. It is circulated in the chat box. Okay, thank you, ma'am.